चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। ये पेपर सबके पास होगा आई बिलीव, देखा आपने at least for those people who will be appearing for this CLAT, they need to understand this CLAT is the most proper CLAT ever. इसके पहले जो दो CLATs हुए थे 20 and 21 में काफी कुछ उसमें प्रॉब्लम्स थी, कहीं कुछ इश्यूज थे. So this is more like a ideal CLAT we can consider. When you analyze carefully, you will find the type of question which has appeared in CLAT 22 is being expected. That is what they were expecting. और वो जो पेपर पैटर्न चेंज किया था, तो उसके बाद जब उन्होंने सोचा होगा तो वो इस तरीके से सोचा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए. ठीक है. So we are officially starting with this crash course batch from today. So I thought, why not to start with a discussion on few basic things which will help you to move on about your preparation. कुछ चीजें यहाँ से क्लियर भी हो जाएंगी और बहुत हद तक आपको एक आइडिया भी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे प्रोसीड करना है, स्पेसिफिकली फॉर टू सब्जेक्ट्स which I generally take about current affairs and QT. And legal ka humne, we have already done a complete analysis of legal reasoning that you can refer. But again, in future also we can do it. Critical and RC ka bhi I think ma'am has already done. Probably she will do it in future. So basically ये पेपर को आपने अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो भी चलिए ठीक है. But I still believe you have to watch at least 2 or 3 times more. कम से कम 2-3 बार और डिटेल में जाके उस पेपर को अंडरस्टैंड कीजिए. टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं, किस टाइप का एक्सपेक्टेशन है, irrespective of the topic it is. You name a topic, you will find a variety over there. So what type of variety is available, that we really need to understand. And that variety is being important while you will be selecting a question when you are solving mock or probably when you are solving in a normal test and anything. That will fetch you an idea. See, you are fighting with an exam which is absolutely don't have a fixed syllabus. That is why these type of strategy, these type of discussion are more and more required. This is not maths. You are not preparing for JEE where you know this is a book and that this is the book. Usme se ye content hai, yahi aayega. We are fighting a kind of an level which is absolutely unavailable to us. Nobody knows what type of questions can come in which topic, but the advantage of this side is this is expecting on some specific note. That is why what my suggestion would be, 22 ke jo paper hai, 20 and 21 I would not suggest much, because as I told you 2021 mein wo experiment hi chalta raha, do batches to बेचारे परेशान ही रहे. So 22 was more or like similar CLAT you can expect in for so many years. Why I am saying this, because बड़े जितने भी exams होते हैं, they generally do a kind of an experiment and then they realize, yes, this is the perfect pattern. So when they say this is a pattern, they generally follow that pattern. They follow the context. You name a bigger exams like CAT, you take a name exam of banking exams like IBPS. I can give you a number of exams. GMAT, all these exams have first initial 1 or 2 years good. You will find problems, errors, but slowly gradually they understand what type of the expectation should be there. So first suggestion from today's session would be compulsory. If you don't have a hard copy, it's fine. Okay, I will be uploading this PDF today itself in your application, or it is available very easily. You can see it from anywhere. Okay, so what you need to do is complete detail analysis. You can do it. I don't expect you to solve like a mock, because already maximum type के questions में कभी भी हमने discussion किया हुआ है, तो उसको mock के जैसे मत लेना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा encouragement मिल जाएगा. रीजन कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, क्योंकि मैक्सिमम के आंसर्स आपको अब पता ही है, तो वो नहीं चाहिए किसी भी केस में. मेरे को लगता है कि आपको जस्ट इस पेपर को वॉच करना है, अंडरस्टैंड करना है, पैसेजेस को समझना है कि टाइप ऑफ पैसेजेस क्या है. हम जितना भी कोशिश कर लें, मैं आपको कितने बार भी डिस्कस करूं, मैं बताऊं और दूसरे फैकल्टीज आपको अलग अलग लेवल पे बताएं, जब तक आपका डिटेल कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगा तब तक आपको जजमेंट लेने में मुश्किल जाएगा. इसका एनालिसिस करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज एक साइड और पे आता है, वाइल सिलेक्शन ऑफ, मतलब स्ट्रेटेजी फॉर्म करने में. स्ट्रेटेजी कैसा होता है कि जनरली जो बहुत फिक्स एग्जाम्स होते हैं उनका स्ट्रेटेजी बहुत फिक्स होता है. दैट कैन बी डिफाइंड कि आप पहले ये करो, दूसरा ये करो, तीसरा ये करो.
अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई एनालाइज क्लैट स्पेसिफिकली 22 का एनालिसिस करने के बाद, मेरे हिसाब से बहुत फिक्स स्ट्रेटेजी पे आप वर्क नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली बदलना पड़ेगा। कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो अपने आप में डिसाइडेड होते हैं कि पहला सेक्शन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, बट यहाँ ऐसा नहीं है। तो उन्होंने आपको एक ओपन पेपर दिया हुआ है, वो भी हार्ड कॉपी में। तो उस हार्ड कॉपी में पेपर है, तो आपको डिसाइड करना है स्ट्रेटेजी क्या है। हम जनरली बोलते हैं कि स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि करंट अफेयर से शुरू करो, फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रेंथ एरिया लीगल पे जाओ, फिर उसके बाद अपन और कोई टॉपिक्स पे जाओ, इस टाइप से। बट दिस टाइम what I am trying to say is that CLAT 2022 आपको बताएगा कि which section to choose first and which section to choose last, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टोटली इंडिविजुअल भी बेस्ड है। इसलिए अगर आप देखेंगे इस बार आप जब मॉक दे रहे हो, तो मैं बहुत ज्यादा इस बात पे प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको यही फॉलो करना है। आपने अभी तक 3 या 4 दिनों ने मॉक दिए हैं, मैंने बहुत ज्यादा नहीं बोला। लास्ट ईयर तक बहुत पर्टिकुलर थे कि नहीं आप पहले करंट अफेयर सीखो। So this time what I am trying and I am understanding. See, we are also learning. Please try and understand this is new for everyone. First time when it came in 2020, nobody was knowing anything. In fact, consortium was not knowing anything. 21 थोड़ा बहुत समझ आया, but paper was completely difficult. अलग आ गया. 22 now we are understanding that this is what the requirement is. Okay. So irrespective of the selection of the section, what you need to understand basically here is कि जब आप पेपर एनालाइज करेंगे तो टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ आएंगे, सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल समझ में आएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल बी एबल टू डिफाइन CLAT as per your understanding. That is what I really want, and this you should seriously you need to identify. As per me, CLAT is what type of exam where I found CLAT is more towards the legal side or more towards the current affairs side. What type of analysis that you wanted to make it, that you need to define it. ठीक है। Now इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझसे नहीं सजेशन मांग सकते। Of course you will ask me, I'll give you a standard suggestion. This is the ideal. You should start from this. You should devote time this much. You can devote the second paper में इतना है, third में इतना, and so on and so on. But what I try to mean is by the time when the 6th, 7th mocks will complete, छठवा सातवां मैक्सिमम 8वें तक, you have a clear cut strategical defined, मतलब एक स्ट्रेटेजी डिफाइंड होनी चाहिए, कंपल्सरी क्लियर कट स्ट्रेटेजी, एंड उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात जो मैंने एनालाइज की, खासकर जो सेक्शंस हैं लीगल और क्रिटिकल, ये दो बड़े चैलेंजिंग सेक्शंस बन गए, लीगल एंड क्रिटिकल। मोर और लेस करंट अफेयर इज प्रीटी डिफाइंड, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। क्यूटी इज ऑल्सो वेरी डिफाइंड, है ना। क्यूटी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। आई एम श्योर दिस ईयर जो क्यूटी आया वो लोग फॉलो करेंगे कंटिन्यूएशन पे, इसको इसी को फॉलो करते हुए जाएंगे। दिस इज परफेक्ट क्यूटी बेसिकली एज कंपेयर टू प्रीवियस 2 years। एंड इंग्लिश की जो बात करें, इंग्लिश इज मोर ऑन इजी साइड पेपर। तो ये तीनों को मैं अलग कर दूं तो मेन चैलेंजिंग वाज लीगल एंड क्रिटिकल। एंड लीगल एंड क्रिटिकल में प्रॉब्लम कहां था, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम था उसके क्वेश्चंस फ्रेमिंग, पैसेजेस में नहीं था, शॉर्ट, राइट। So you should understand one thing, passages are not a problem. Passages, I think length of a passages in some cases is maybe a problem. Language, I don't find any problem in language. Am I right? Language is there any बहुत difficult? उससे तो English की language probably ज्यादा थोड़ी difficult हो, हाँ, but on an average देखा जाए हमको language of passage से ज्यादा matter करता है questions का जो definition. What I am understanding is still you people are not clear with the type of questions are coming. Type of questions, like for example, critical may you can see the author perspective. They can ask you in different ways, which is weakening your strength, which is strengthening your argument, which is weakening your argument से लेके कई अलग-अलग varieties तक आप पहुंच सकते हैं। तो जब critical को आप डिफाइन करेंगे, आपका टास्क होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे एनालाइज करने के लिए सबसे क्रूशियल है टाइप ऑफ क्वेश्चन। हर एक टाइप के क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या पूछा है, और वो आपको क्लियर कट नहीं समझा है, यहां पर आप श्वेता मैम है, आपको बात करनी है और डिफाइन करनी। लीगल आपके पास दो फैकल्टी है, अनुराधा मैम भी है, अपना हारिस सर भी है। आपको क्लियर कट अंडरस्टैंड करना है कि ये पैसेज को मैं
ये लाइन से आपका टाइप जो आ रहा है उससे क्या डिफाइन हो रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि खासकर क्रिटिकल में और लीगल में कंटेंट अलग होगा, डेफिनेटली कंटेंट अलग होगा, बट जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अगर आपने अंडरस्टूड किया तो वो ज्यादा नहीं बदल सकता। उसका एक लिमिट है, उसको वो बहुत ज्यादा बियॉन्ड लेके जाके नहीं लेके जाएंगे। सो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कंपल्सरी 22 का एक डिटेल्ड एनालिसिस कीजिए। यस और नो? आपने किया, मुझे नहीं पता, आपको फिर से करना है दोबारा करना है, एटलीस्ट दोबारा करना, कम से कम 2 या 3 बार कंप्लीट करिए। एक एक क्वेश्चनों को बारीकी से जांचिए। करंट अफेयर्स में आपको रियलाइज होगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपेक्टेशन क्या है। तो मैं आज आपको करंट अफेयर और डेफिनेटली इसका एलेबोरेशन करूंगा। करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा डीप में मैं उस चीज पे जाऊंगा जहां पे आपके क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट है। आज जो क्लैट का करंट अफेयर्स है वो बहुत हद तक अवेलेबल है हमारे सामने, उस पर मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बट स्टिल करंट अफेयर्स के बारे में मैं आपको आज डिस्कस करूंगा कि क्या मुझे एनालाइज करके, क्योंकि बैकग्राउंड में मैं यही कर रहा हूं, मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ पाऊं कि किस टाइप के क्वेश्चन। देखो मैं कोई गैस नहीं कर सकता और मैं कभी भी आपको कोई हिंट नहीं दूंगा कि ये क्वेश्चन आएगा इसको पढ़ लो। व्हाट वी आर ट्राइंग इज, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कंसोर्शियम के माइंड को पढ़ने का। दैट इज द वे वी कैन विन द वे बेटर। आज आईआईटी जेडबलई हो या नीट हो या सीए हो, इन सारे बड़े एग्जाम्स में जो क्लासेस होती हैं वो इतने कॉन्फिडेंटली इतना अच्छे से क्यों कर पाती, क्योंकि इनका बहुत बड़ा बैकग्राउंड, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि जेडबलई में क्या टाइप के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उतने ही क्वेश्चन पढ़ते हैं जैसे अपन कॉमर्स में या साइंस में, जब अपन बीकॉम करेंगे बीएससी करते हैं बच्चे, तो वो उतने ही क्वेश्चन पढ़ के छोड़ देते ना, वैसा नहीं है सिस्टम। व्हाट व्हाट आई ट्राई टू मीन हियर इज वी आर ट्राइंग कि भाई उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, वो समझ आ गया तो ये ओशियन है। इस ओशियन में हम कहीं एक स्पेसिफिक जगह जाके अपन एटलीस्ट मैक्सिमम कैप्चरिंग कर पाएंगे। यस और नो? और इसमें ये बात ध्यान रखिए कि मैं कितना ही कोशिश करूं ये कंप्लीट नहीं होने वाला। हम लोग कितनी ही कोशिश कर लें ये बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा गाइस। आपका मेहनत ना सही तरफ कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए कि टाइप्स किस तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं। और अगर आपको डिफाइन नहीं हो रहा है, वी विल बी स्टार्टिंग विथ वन ऑन वन डिस्कशन ऑल्सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। मंडे से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप आइए अपार्ट फ्रॉम द सेशंस एंड टॉक, बिल्कुल डिस्कशन कीजिए कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इनफैक्ट लीगल फैकल्टीज का आप बिल्कुल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर अपॉइंटमेंट मुझे मिलता है, ज्यादा लोग साथ मिलते हैं, तो मैं 2-3 घंटे के लिए उनको बुलाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू टॉक टू अस, यू डिस्कस विद अस एंड आइडेंटिफाई कि ये चीज मेरा एनालिसिस पे हो रहा है। आपके को ना एकदम इंटरनल बस जाना चाहिए कि भाई ये टाइप के क्वेश्चन है मुझे आते हैं, ये टाइप के क्वेश्चन है मुझे आते हैं, ये चीज। सरप्राइज एलिमेंट जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना कर दें। फिर भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 150 की 150 टाइप्स आपको समझ आएंगे, बट तो भी मैं जितना बोल रहा हूँ सरप्राइजेस जो है अब 3 साल के बाद खत्म होने चाहिए, ये किसी भी हालत में खत्म होनी चाहिए। वो सरप्राइजेस खत्म हुए तो आप मुझे बताओ स्कोर कर पाएंगे आप? यस और नो? दैट्स व्हाट ट्राइंग व्हाट आई मीन हियर इज, वो सरप्राइजेस खत्म करते हैं। क्लियर है? अब मैं, बहुत सारे बच्चे मॉक दे रहे हैं, तो मैं एक स्टैंडर्ड आपको तुरंत क्विकली एक स्ट्रेटेजी बता देता हूं जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। बट आई डोंट मीन, अगेन आई एम रिपीटिंग यू, टू कंटिन्यू विद द सेम स्ट्रेटेजी। व्हाई? बिकॉज एज आई टोल्ड यू दिस इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर एग्जाम। पहले जो एग्जाम था उसकी स्ट्रेटेजीज बनती थी, आज भी मैं मैनेजमेंट को पढ़ाता हूं उनकी स्ट्रेटेजीज होती है, क्योंकि बहुत डिफाइंड एग्जाम्स है, इनमें नहीं हो सकती है। तो ये मुझे करना, बट एक चीज को लेके मैं आज भी स्ट्रिक्ट, और वो ये है पांचों सेक्शन को अटेम्प्ट कर। इसको तो मैं आप बोल रहा हूँ ना खारिज, आज आज नहीं, मैं 10 साल बाद भी अगर किसी को पढ़ा रहा हूँ ना, तो भी मैं ये बोलूंगा कि आप ये कर नहीं सकते कि क्यूटी छोड़ दो या करंट अफेयर छोड़ दो, ये कभी भी नहीं कर सकते। आपने अगर अपना दायरा नहीं बढ़ाया तो पेपर में आप सक्सीड नहीं हो सकते, ये तय है। फिर आपको 40-50 मार्क्स में सेटल होना पड़ेगा। 40-50 मार्क्स में सेटल होकर कुछ नहीं होने वाला। रिजर्वेशन है तो नागपुर में मिल जाएगा, नहीं हुआ तो फिर आपको सीईटी, अभी तक एडमिशन नहीं हो रहा है, अभी तक कॉलेज चालू नहीं हुआ है, वेट करो फिर सीईटी, है ना। या सिम्बोसिस है ना पुणे नागपुर में, पुणे भी तो बहुत मुश्किल है, नहीं तो है प्राइवेट कॉलेजेस कुछ, उनमें नहीं जाना।
I don't want a single student is waiting for CET or a single student is not getting an NLU. Every single one पूरे के पूरे NLU जाना चाहिए, एक पूरा बैच पढ़ना चाहिए, भले ही आपका कोई भी कॉलेज में हो, based on whatever it is, you should be in NLU. That is what our aim. और उसके लिए I really need minimum 75 to 80 marks minimum, which is I am telling you it's not coming at present, right? Not even a single person has touched 70. किसी ने किया क्या अभी तक? 70 हुआ? करना है, पर अभी है, मौका है। 28 से 27-28 मार्क्स तो बन ही चुके हैं हमारे पास। मैं श्योर हूं कि 30 या उससे ज्यादा भी पहुंचा दूंगा मैं। ठीक है, तो अब मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं वो स्ट्रेटेजी मैं एक जनरली एक मेरे अंडरस्टैंडिंग पे डिफाइंड है। ठीक है, और उसका एक पर्टिकुलर लॉजिक है, उसके पीछे साइंस भी है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा रैंडम बोल रहा हूं, पर वंस अगेन ये स्ट्रेटेजीज आप अपने हिसाब से चेंज करिएगा और अकॉर्डिंगली डिफाइन कीजिएगा। ठीक है, सो जैसा हम हर बार बोलते रहे हैं कि आपके मॉक्स चल ही रहे हैं, आपको मॉक के हिसाब से चलना है। पहला बात मैंने क्लियर कर दिया कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कंपल्सरी आपको क्या करना है, सारे सेक्शन अटेंड करना है। ठीक है, दिस इज योर पैटर्न, करेक्ट। नाउ दिस इज योर ऑर्डर। इनफैक्ट 3 साल से सेम ही ऑर्डर है। पहला सेक्शन इंग्लिश होगा, दूसरा करंट अफेयर होगा, तीसरा लीगल होगा, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव। इससे फर्क कुछ नहीं पड़ने। क्यों नहीं पढ़ने वाला? क्योंकि हार्ड कॉपी है आपके हाथ, पेपर हार्ड मतलब सॉफ्ट हार्ड कॉपी में है, तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, कहीं पे भी कोई भी रहे, आप तुरंत पन्ना पलटा सकते हैं। ठीक है, what I personally believe, this is 30 questions, right? This is 30 questions, this is 35, this is 40, this is 30 and this is 15. so ये bifurcation जो आपका है, इसमें नो डाउट आपको कंपलसरी कहां से शुरू करना चाहिए? करंट अफेयर्स वुड बी योर फर्स्ट सेक्शन, हमेशा स्टार्ट करना चाहिए। इसका रीजन मैं आपको जस्टिफाई कर दूं, क्योंकि करंट अफेयर इज समथिंग विच इज मेमोरी बेस्ड। अगर आप अंदर घुस गए पेपर में और करंट अफेयर को लास्ट में रखते हैं ना, तो जो याद है वो भी भूल चुके हो। तो मेमोरी बेस्ड चीजों को कभी भी शुरू में ही स्टार्ट करो। इसका सबसे बड़ा लॉजिकल आप देखोगे, दुनिया के बड़े एग्जाम्स लाइक इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम कैट है, उसका पहला सेक्शन इंग्लिश ही होता है, क्योंकि उसमें वोकैबुलरी होती, ग्रामर होती। जीमैट आप देखो, उनमें भी इंग्लिश होता है। तो करंट अफेयर को रखने का एक रीजन है, बट अगेन आपको लगता है कि नहीं मुझे तो याद रहेगा, इट्स टोटली अप टू यू। मैं आपको केवल एक ही चीजों पे रोकूंगा, वो है मैंने देखा है अगर आपके एक सेक्शन में 0 अटेम्प्ट, वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँ। 5-6 मॉक तक चलने दो, इसलिए अभी तक कुछ नहीं बोला जा रहा। उसके बाद तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको 5 सेक्शन में बिगर सोचे समझे अप्लाई मतलब करना है, मतलब करना ही। ठीक है, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप ऐसा नहीं करें। और आपके लिए ही बेनिफिट के लिए मैं कर रहा हूं। आपको पता नहीं है कि सेवियर जो होता है ना, जिसको हम छोड़ते हैं वही सेवियर बनता है। आपको भी लगता है ना कि डिफिकल्ट है, वैसे ही उनको भी पता है कि बच्चों के लिए डिफिकल्ट है, और इसलिए वो क्या करते हैं, इजी डालते हैं। डाले ना उन्होंने इजी। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर जिसने 3 क्यूटी पहले कर लिया होगा ना, पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे, वो सबसे खुश होगा। पिछले साल 15 की 15 सही हुए होंगे उसको, 15। कैन यू इमेजिन? 15 मार्क्स आए होंगे मुश्किल से 15 मिनट। चलो 15 नहीं, बट 10 होंगे। इसलिए मेरा मानना है कि आपका सेक्शन वाइज प्रॉपर होना चाहिए टाइम अलॉटमेंट। ठीक है, टाइम अलॉटमेंट क्या करना है वो मैं बाद में देखते हैं। इसके बाद हाईली रिकमेंडेड दैट यू शुड सॉल्व लीगल, बिकॉज दिस इज लेंथी, दिस इज बिग। यहां पर आपको टाइम ज्यादा लग सकता है, टोटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल रीडिंग स्पीड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितना है आपका, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद what I would suggest is to go with English. English is manageable section, क्योंकि ये आपको अभी भी इंग्लिश में मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंग्लिश में कुछ कम ज्यादा हो रहा होगा तो दैट कैन बी वर्कड आउट, बट दिस इज अ सेक्शन व्हिच विल बी इजी फॉर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। इजी का कहने का मतलब है कि मैक्सिमम आर स्कोरिंग 18, 20, 16, 15 के अबव। अगर 50% से ज्यादा मैक्सिमम का स्कोर आ रहा है, इसका मतलब ये सेक्शन इजी था। मैक्सिमम मतलब मेरी क्लास का सैंपल में ले लूंगा, तो अभी फिलहाल नहीं जज किया मैंने, बट ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ 15-20 मिनिमम आता ही है। मतलब यहाँ पे 25-26 भी आता है आउट ऑफ 30। तो ये सी होना चाहिए। डी सेक्शन विल बी योर क्रिटिकल। लॉजिकल क्यों नाम दिया मुझे समझ नहीं आया, उसको क्रिटिकल ही बोल देते भैया। ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज नाम दिया, उसको आरसी बोल देते थे, ज्यादा अच्छा लगता था कि नहीं?
है ना, जबरदस्ती बच्चों को कंफ्यूज किया। वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहले 2 साल तो हम एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, सब पता ही नहीं चल रहा। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब होता है उसमें वोकैबलरी भी आएगी, उसमें ग्रामर आएगी, उसमें आपका ये कॉम्प्रिहेंशन आएगा, सब कुछ आएगा। और केवल कॉम्प्रिहेंशन आएगा ये थोड़ी ना आएगा, बता। ठीक है। और अनडाउटेबली योर फिफ्थ सेक्शन विल बी क्यूटी, कंपल्सरी ये टाइम फ्रेम होना चाहिए। अब 120 मिनट्स जो आपके पास डिफाइंड है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, एक मॉक में इस्तेमाल करके देखो। अगर जम गया, नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं जमा, आप थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज करो, बट जो चेंज करोगे ना, इमोशनल चेंज नहीं करना। इट शुड बी मोर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मैंने का मतलब है, हो सकता है आपका किसी का क्यूटी बहुत ही अच्छा है, तो आप क्यूटी को अपग्रेड कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, बीच में ला सकते हैं। हो सकता है आपको क्यूटी की जगह आप क्रिटिकल में आप गड़बड़ कर रहे हैं, क्रिटिकल को नहीं चले चले, पर जो टाइम अलॉट करना है ना, वो नहीं ज्यादा बदलना। ऑर्डर जरूर बदल सकते हो, बट टाइम अलॉटमेंट नहीं किया अपन ने। लॉजिकल का टाइम क्यूटी को दे दिए और क्यूटी का टाइम लॉजिकल को दे दिए, तो हो गया ना उल्टा पूरा पूरा का। वैसा नहीं हो सकता है बिल्कुल। तो चलिए बताइए, करंट अफेयर 35 क्वेश्चन पढ़ने में हम लोग कितने, 20 मिनट में 50 कर लेते हैं? जब मैं टेस्ट दे रहा हूं आपको, तो कितनी देर में करते हैं? 20 मिनट में आदत पड़ गई आपकी। 35 करने में कितना लगेगा? 15 मिनट। सर क्लैट का रहेगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि हम ज्यादा सोचेंगे कि गलती। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से नाउ। द माय सेकंड बिगेस्ट सजेशन इज, डोंट ओवरथिंक। मैंने जैसे ही बोला आपको टाइम दो करंट अफेयर्स में, तो आपके टाइम ज्यादा निकलने लगा, आपको लगने लगा कि 35 क्वेश्चन है। नहीं, करंट अफेयर इज समथिंग विच इज कंप्लीटली वन टाइम वन शॉट में आपको क्लियर होगा। आया नहीं आया, नहीं आया छोड़ दी, या फिर आपने गैस किया और निकल गए। सो what I would request you to take 15 minute at max. 15 is a higher time. ठीक है, आई थिंक कोई लोग 10 मिनट में भी कर लेंगे, बट 15 मिनट इज अ डिसेंट इनफ टाइम टू डिवोट फॉर 35 क्वेश्चन, 7 पैसेजेस। पैसेजेस का लेंथ इज ऑल्सो वेरी लेस, कंपैरेटिवली मैनेजेबल। ठीक है। लीगल, दिस इज अ मेन सेक्शन, दिस इज अ मेन सेक्शन, तो इसमें आपको टाइम भी डिवोट करना है। बट आई थिंक लीगल में आप सारे के सारे पैसेजेस शायद ना कर पाए। फाइन, एक या दो पैसेजेस छूट भी गया, ये ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे से। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर तक भी मैं क्या बोलता हूँ, बोलता रहा। अभी आतिफ भी बैठे हैं यहाँ पे लास्ट ईयर में, बाकी लोग भी, कई लोग थे जिन्होंने पिछले साल मेरी स्ट्रेटेजी, मैं बोलता था सारे पैसेजेस सॉल्व करो, सारे पैसेजेस। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि सारे पैसेजेस तक जहां पाना मुश्किल है, विच इज प्रैक्टिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द फैक्ट। आई थिंक 8 पैसेजेस हैं, है ना? यहाँ पे कितने पैसेज हैं? 7। यहाँ कितने हैं? 8। 8 पैसेजेस में से कितने पैसेजेस कर पाओगे? तो लेट अस मेक अ टारगेट ऑफ 6 पैसेज, दैट्स इट। 6 से ज्यादा टारगेट नहीं करना है। 6 पैसेज इज अराउंड 30 क्वेश्चंस। अगर टाइम परमिट किया तो 7वां कोई हो सकता है, बट वो जो 6 का सिलेक्शन है, वो इतना परफेक्ट होना चाहिए आपका कि वो 6 में से आपके मैक्सिमम सही है। Our target should be minimum 25 marks in legal, and beyond 25 it's actually tough. It's not that easy. So over expectation करना भी ज्यादा अच्छा नहीं। एक समय था जब लीगल में 40 में से आप 35 भी ला सकते थे, 38 भी ला सकते थे, जब वो काय में आते सीईटी वाले, उसमें अभी भी कर लोगे, पूरे के पूरे सही कर डालोगे। पर यहाँ मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि लीगल में कई बार समझ में नहीं आता कि ये क्रिटिकल का क्वेश्चन है कि आरसी का है कि लीगल का क्वेश्चन है, कई बार। हाँ, दैट्स व्हाट यू डोंट नो एक्चुअली। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बच्चों की, पहले आपको क्लैट का पेपर एनालाइज करना है और 22 पे ही जाओ बस। 2021 पे ज्यादा फोकस मत करो, वो आपको समझाएगा कि यार ये इस तरीके से पढ़ना। और वो रीजनिंग तो मैं आपकी डेवलप करके ही छोड़ूंगा, आप चिंता मत करो, इतने लेक्चर्स होने वाले हैं आपके इसके लिए लीगल के। बट तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बननी ही पड़ेगी। क्लास जो होती है वो कॉमन होती है, इंडिविजुअल तो नहीं हो सकती ना। तो कॉमन हो रही है, तो हम कॉमन सबके हिसाब से पढ़ा रहे हैं, आपको अपने हिसाब से क्या करना है, उसमें से निकालना है चीजों को। इज इट क्लियर? तो इसके लिए मुझे लगता है 35 मिनट टाइम दीजिए, और आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, लगभग 30 क्वेश्चन। क्लियर है? तो टोटल 50 मिनट आप डिवोट कर चुके हैं, 70 मिनट बाकी हैं अभी आपके पास, है ना?
सो कैन आई से 2 PM से लेके 2:15 तक आप कहां पर हैं? करंट अफेयर। 2:15 से 2:50 तक आप कहां पर हैं? लीगल। इसके बाद आएगा हमारा थर्ड सेक्शन, इंग्लिश। अगर आप में से किसी को क्वांट पसंद है तो यू कैन टेक क्यूटी हियर, थर्ड सेक्शन। आइडियली या तो वो थर्ड में जाएगा या फिफ्थ में जाएगा, या तो पसंद है तो थर्ड पे लाओ, पसंद नहीं है तो फिफ्थ में लेके चले जाओ। उसका रीजन थर्ड पे क्यों? क्योंकि पसंद है ना, तो अभी भी आप उतना ज्यादा डाउन नहीं हुए हैं 50 मिनट के बाद जितना ज्यादा आप आखिरी में डाउन हो चुके हों। अगर क्यूटी पसंद है तो बीच में करना, तो आराम से 10-12 क्वेश्चन निकाल लो इजीली, बट देख के, हाँ, सोच समझ, और उसकी एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो बस टाइम है। सो इट शुड बी आइदर थर्ड और फिफ्थ। तो लेट अस अज्यूम कि अभी फिलहाल आप इंग्लिश को थर्ड रखेंगे। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस हैं। क्या इसमें सारे पैसेजेस हो पाते हैं? आई बिलीव यहां आपको सारे पैसेजेस करने पड़ेंगे, पर हो सकता है सारे क्वेश्चंस ना कर, पर सारे पैसेजेस जरूर पढ़ने पड़े, क्योंकि लीगल से लेंथ कम होगा कि बराबर ही रहे? लीगल से लेंथ उसका कम रहने। अगर लीगल से लेंथ कम है, इसका ये मतलब है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है कि आप सारे पैसेजेस पढ़ पाए। सारे पैसेज पढ़ने का एडवांटेज क्या होगा? आपका सिलेक्शन पावर बढ़ जाए। समझ रहे हैं आप? तो सिलेक्शन पावर बढ़ाने के लिए मुझे सारे पैसेजेस तक कवर करना पड़ेगा। इसीलिए तो बोल रहा हूं कि पूरे 150 अटेम्प्ट करो, कि आपके पास रेंज है तो वैरायटी है तो हम कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रख के चलेंगे आप। इसमें मुझे लगता है लगभग 25 मिनट्स आपको देने पड़ेंगे। तो 250 से लेके कहां तक? 10 मिनट मतलब 3 बज गया, 15 बजे, तो 3:15। यस और नो? एंड फाइनली आपके पास जो आ गया है लॉजिकल। यहां पर यू हैव टू बी वेरी चूजी। यहां आपके अटेम्प्ट्स कम होने दीजिए, पर यह भी ध्यान रखिएगा, ओवर थिंकिंग यहां नहीं करना है। दिस सेक्शन विल एक्चुअली एक ट्रैप है आपके लिए। ये सेक्शन एक ऐसा ट्रैप है जो फंसाता है, इसीलिए मैं डर के मारे इसको कभी भी आगे नहीं बोलता हूं। आपने शुरू में अगर लॉजिकल उठा लिया ना तो पक्का फंसोगे आप। और ये एक्चुअली लॉजिकल का प्रॉब्लम ही है। सीईटी एग्जाम में अलग प्रकार का लॉजिकल आएगा जो इजी होता है, जो अपने को लगता है, बट तो भी अपन उसको कहां अटेम्प्ट करते हैं? आखिरी आखिरी, ताकि फंसना नहीं चाहिए। तो लॉजिकल इज अ ट्रैप। उस ट्रैप से ना फंसे इसलिए अपन आखिरी में करते हैं। आखिरी में रखते हैं तो अपने पास क्या टाइमिंग आएगा इसके लिए? लगभग 25 मिनट्स इसके लिए। सो 3:15 से 3:40 तक हमने रख लिया है। ठीक है? कैन आई से वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर क्यूटी? अभी भी 20 मिनट है। अगर मैं 10 मिनट का बफर भी मानूं तो भी 10 मिनट आप दे सकते हैं क्यूटी को। सो मुझे ऐसा लगता है मिनिमम 10 to 12 मिनट्स मस्ट बी देयर फॉर क्यूटी। इसलिए ये मत सोचिएगा कि मेरे पास टाइम बच गया तो मैं वापस चलता हूं लीगल पे, वहां से कुछ ले लूंगा। अरे भाई, जो बनना था लीगल का वो बन चुका। समझ रहे हैं क्यों बोला जा रहा है आपको नया नया करो? क्योंकि जो नहीं बन रहा है वो तो नहीं बनेगा ना। जो बनना था वो पहले ही बन गया। बहुत रेयर ऐसा होता है कि आप वापस लौट के जाओ सेक्शन में और कुछ बन जाए। उल्टा गैसिंग होगी, और ये एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग 10 बार याद रखना, भूलना बिल्कुल भी नहीं। आपको पता नहीं है 0.25 आपकी क्या रैंक कर देगा और कहां से कहां पहुंचा देगा। और 0.25 मतलब गलती से एक क्वेश्चन हमने रॉन्ग कर दिया, गलती से अपन पहुंच गए वापिस यहाँ पे लीगल में, अरे ये क्वेश्चन ऐसा है। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये मौका मत दो। क्यूटी में इसके चांसेस कम है, क्योंकि आपको पता है आंसर ऑप्शन में से आ ही जाए। इज इट क्लियर? तो क्यूटी में जो ओवरऑल अपन देखेंगे अंडरस्टैंडिंग्स, वो बहुत काफी बेटर है। तो मेरे ख्याल से 10 to 12 मिनट इसको डिवोट करिए, एंड इस तरीके से आपका पूरा 2 घंटे का बाइफोकेशन होता है। जितना आसानी से, मैं हर बार बोलता हूं कि बोलना आसान है, उतना करना डिफिकल्ट होता है, बट करना तो पड़ेगा।
और इसलिए इतने सारे मॉक्स हम लोग दे दे के अपन लोग करने वाले। इज इट क्लियर सो फार? क्यूटी से में 15 जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप मार्क्स जो है यहाँ पे 8 to 10 टारगेट कर सकते हैं। मिनिमम 8 मार्क्स आपको टारगेट करना है और 10 एट मैक्स तक चले जाएंगे। 10 तब आएंगे जब 11-12 अटेम्प्ट करोगे, मतलब तीनों अटेम्प्ट करोगे। और अगर 2 अटेम्प्ट करोगे तो 8 या 10, 8 या 9 मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में इट्स एक्चुअली स्टिल एक बहुत बड़ा डिलेमा है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको, जो है तो है। दिस इज व्हाट आई एम विटनेसिंग, दैट दिस इज अ सेक्शन व्हिच इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर मैक्सिमम। यस और नो? एम आई राइट? आपने दिए मॉक, मैंने नहीं दिए, बट व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, this is one of the section which is not certain. So let us not expect too much from this. So can I expect 12 to 13 marks from this? Out of 13, 12 to 13, I'm making a target of next 5-7 marks. Let us assume इतना अपना 12 to 13 होना चाहिए. Legal, what is the maximum score coming in legal at present? तुम यार 4.5 4.5 मत बताओ, समझ में आ रहा है? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। कितना कितना आ रहा है? 18 आया हाईएस्ट तक। इधर किसी का भी आया 20 क्रॉस किया क्या? सो कैन वी मेक अ टारगेट ऑफ 20 फॉर नेक्स्ट 4-5 मार्क्स? 20 के लिए आपको क्या करना है? 20 के लिए आपको करना है 8 में से 6 अच्छे पैसेजेस निकालना। पहला स्टेप, 6 अच्छे पैसेजेस। उन 6 पैसेजेस को टाइम पे रीड करना है और उन 6 पैसेजेस में से 30 में से कम 27-28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो टॉपर भी होगा ना, उसके भी 100% क्वेश्चन सही नहीं हो सकते। ये टॉपिक ही ऐसे, 1-2 क्वेश्चन में कॉन्ट्रडिक्ट होना तय है, तो गलत होंगे। तो हम अगर 27-28 अटेम्प्ट करेंगे 27-28 तक, तो रफली यदि अपने 24-25 सही हुए, वी कैन रीच टू दिस लेवल। तो हमें लीगल में अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है, ये हमारा टारगेट है। बेस्ड ऑन दैट वी कैन रीच टू दैट 20 मार्क्स। और ये 4-5 जो स्कोर आ रहा है ना भैया, एनालिसिस नहीं किया जा रहा, मैं मान ही नहीं सकता हूं। नहीं तो आप इतने अपने लीगल रीजनिंग पे हर इतने सेशंस कर लिए, 4-5 स्कोर तो पॉसिबल नहीं है। आप खुद ऑनेस्टली बता दो मुझे, 15-16 से तो कम मैं सोच ही नहीं सकता हूं। 15-16 भी पिछले बार के लिए बहुत ज्यादा हो गए थे, बट इस बार के लिए बहुत कम है। हमारा टारगेट 25 तक पहुंचना है। आपको 6 पैसेजेस निकालना है, 27-28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पैसेजेस प्रॉपर्ली रीड करना है, और 27-28 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें आपका एक सर्टेनिटी ये होना चाहिए कि हमने बराबर ऑप्शन से एलिमिनेट करके बराबर एक कंक्लूजन तक पहुंचे। यस और नो? तो 20 वी आर टारगेटिंग मिनिमम। दिस इज व्हाट वी आर टारगेट इज फॉर नेक्स्ट करंट अफेयर्स। इसमें कितना आ रहा है? इसमें हाईएस्ट कितना आया? 30 आया किसी का? 30 ज्यादा हो गया नहीं? और हाँ, आउट ऑफ 35 मॉक में बोल रहा हूँ बेटा, मॉक में नहीं आया। मॉक का जो करंट अफेयर है ना, वो अलग लेवल का मॉक। देखो 35 में से ऐसा लगता है कि आर टारगेट शुड बी समवेयर बिटवीन 18 to 20 मार्क्स। ठीक है, 18 to 20 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लीगल से अलग है। ठीक है, तो मैं अभी करंट अफेयर को जब एनालाइज करूंगा, उसकी बातों को ध्यान रखना। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में मैं ये सब चीजें डिस्कस करता हूँ, अपना सोच समझता हूँ, कई सारे लोगों की वीडियोस देखता हूँ, और उसके बाद मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। तो मैं उसके बेसिस पे आपको बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम 18 मार्क्स हमारा यहाँ का टारगेट। एंड इंग्लिश, वी आर रीडिंग ऑल 6 पैसेजेस। वी विल रीड ऑल 6 पैसेजेस। यस और नो? 6 पैसेजेस मतलब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 30 अटेम्प्ट कर रहे हैं क्या? छूटते हैं इसमें क्वेश्चन? लैंग्वेज इज अ प्रॉब्लम, तो मतलब पैसेज छूट गया, 5 क्वेश्चन छूट गए। आप समझो, मैं आ गया उसी बात पे जो मैंने जहां से शुरू किया था। आप टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। और मुझे ऑनेस्टली बताओ, क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन इतने भयंकर सारे हैं कि हर बारी नया आता है क्या? लिमिटेड है भाई, मोस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली।
यस और नो? यही टाइप टाइप बार बार आ रहा है ना, आप खत्म कर डालो एक ही बार में सब कुछ, जितने टाइप से सब खत्म कर डालो, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट लाइकली आपके दिमाग में ऑटोमेटिक रोल ओवर होगा कि ये करना है, लीस्ट लाइकली ये रोल ओवर होगा। आपको पढ़ना है क्वेश्चन, देखो जो सीधे फैक्चुअल है मैं तो उसकी बात करने की जरूरत ही नहीं, करने की जरूरत है कि फैक्ट बेस्ड पारसी में वो तो सीधे निकलते हैं। वो नहीं हो रहा है इसका मतलब आप बहुत बड़ी गलती में, आपने प्रैक्टिस नहीं की है भाई। फैक्ट बेस्ड 30 में से मुझे लगता है 12-13 क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं है पैसेजेस? आप देखो एक बार एनालाइज करो, मैंने तो नहीं किया इंग्लिश का, बट फैक्ट बेस्ड थे, कंप्लीटली एनालिटिकल बेस्ड हो ही नहीं सकते। नहीं नहीं बेटा, ज्यादा ही होंगे। डायरेक्ट इन्फ्रेंस विल बी देयर, मेन पॉइंट रहेगा, ठीक है, बट फैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चंस थे और रहते हैं, कम से कम 10-12 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही, अदरवाइज इंग्लिश विल बी डिफिकल्ट। यस और नो? इंग्लिश विल बी डिफिकल्ट। अरे भाई आप ये क्यों टेंशन लेते हो कि आपको अलग से पेपर मिलने वाला है? आपका पेपर अलग आएगा क्या? ये ऑफलाइन पेपर है, 70,000 लोगों का एक जैसा पेपर आएगा। तो अगर एक को अगर इतना डिफिकल्ट आया, सबके लिए डिफिकल्ट है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। धोखे से आरसी कर, मैं आप जो बोल रहे हो कि फैक्ट है ही नहीं, इन्फ्लुएंस ही ज्यादा थे, ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस बेस्ड थे या मेन आइडिया बेस्ड थे, सबके लिए प्रॉब्लम है। जी बेटा, ठीक है, मैं मैम से पूछता हूँ, मैम से एग्जैक्टली अपन नंबर ले। कैन आई से इस 30 में से हम एटलीस्ट 15 to 17 एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, जल्दी से कोई जोड़ के बताओ कितने स्कोर हो रहा है आपका, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को जोड़ो। मैक्सिमम कितना आ रहा है? 75? 85? चलो जो कुछ भी एडिशन है, कैन क्यूटी छोड़ के 80? हाँ, 15 से 18, 15, 18, 23, 33, 33 प्लस 20, 53, 53, 63, 65, 65 प्लस 8 इज 70। तो ये 70 to 80 के रेंज पे चल रहा है। ये आपका टारगेट होना चाहिए आने वाले समय। मैं बहुत हायर एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं, बट दिस इज व्हाट द मिनिमम टारगेट दैट वी शुड डिफाइन। इसमें नहीं पहुंच पा रहे हो, उसको आइडेंटिफाई करो, क्या रीजंस, और लेट अस स्टार्ट टॉकिंग टू, आपस में भी हमसे भी बात करना चालू करो। मुझे हर हालत में आप अभी फिलहाल कुछ समय के लिए इस ब्रैकेट में चाहिए, 70-75 मिनिमम। नॉट दैट इजी बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो, प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल। करंट अफेयर कहीं छूट नहीं रहा है, लगभग लगभग आपको सभी तरफ का करवाया जा रहा है। उसके बाद लीगल में जितना पॉसिबल हो सकता है अपन ने सारे टाइप्स कर लिए, उसमें कोई वो नहीं है। लॉजिकल और जो क्रिटिकल के जो सेशंस हो रहे हैं इंग्लिश के बीच बीच में जब जब होते हैं, क्योंकि उसमें लिमिटेशंस है इसलिए वो नहीं है। क्यूटीवी में करवाई रहा हूँ, मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच इज अवेलेबल। तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी और इस रेंज के बियॉन्ड अगर अपन चलेंगे तो 70 कम से कम या 80 तक हम लोग पहुंच सकते। आगे आएगा तो बहुत ही अच्छा है, पर इससे कम नहीं होना चाहिए। तो कैन वी प्लेज फॉर 70 मार्क्स? यस और नो? So at least those who are trying for since long, they can minimum, I can minimum expect from them that they should be in this range. Those who are just starting, it's fine. Nobody, no problem, no worries. At least your target should be 50-55. Those who are starting. I believe this is a pure strategy exam. This is not an exam based on past knowledge, past experience or intelligence तो टेस्ट करेगा ही नहीं यार। Do you really think ये आपका इंटेलिजेंस चेक कर रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि मैं ब्रिलियंट हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं तो मैं अच्छा करूंगा, नहीं हूं तो नहीं करूंगा। दिस इज प्योरली एन एग्जाम ऑफ स्ट्रेटेजी। कल कल का मैच देखा किसी ने? मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल,
कल का मैच, कल क्रिकेट मैच था, आपको मालूम है वनडे मैच था, आपको पता लगेगा कि यार ये अपनी टीम तो ऑस्ट्रेलिया है, तो अपनी इंडिया एक खेल रही थी, दूसरी टीम खेल रही थी, ठीक है, दूसरी इंडिया खेल रही थी। संजू सैमसन आपको मालूम है, सब वंडरफुल बैट्समैन, अनफॉर्चुनेटली उसकी लास्ट मूवमेंट में उसकी स्ट्रेटेजी बिगड़ गई, और वो आदमी इतना अच्छा था और आखिरी में जाके हार गए। 2 ओवर में बनाना था 39 रन, 19th ओवर में वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाया, आखिरी ओवर बनाने थे 34 रन, तब भी उस इंसान ने 24 बना लिए। अब सोचो अगर 19th ओवर में वो 10-12 रन बना लेता तो आइडियली तो जीत जाते थे अपन, क्योंकि 20th ओवर किसको डालना था, शमशेर तरवी, वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, सबसे ज्यादा पिट रहा था वो। तो वो स्ट्रेटेजी अगर वो करेक्ट बना लेता तो वो बराबर होता, प्योरली माइंड गेम। एक छोटा सा एग्जांपल जरूर है, पर ये आपको ध्यान रखना है कि ये इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है बच्चों, ये प्योरली आपका इस बात का टेस्ट है कि आपने स्ट्रेटेजी क्या बनाई, और उसको बनाने के बाद क्या कितनी अच्छी लग रही पेपर में, पेपर में अच्छी लगती ना, है ना, दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, अरे वाह अब तो मेरे को आ ही जाएगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये तो हो गया बना के पेपर में, उसको अपन को एग्जीक्यूट करना है। वी नीड टू बी मोर लाइक जापानीज, राइट, जापानीज एग्जाम है ये, they invest 90% of the time on planning and 10% on execution. In India, we do a reverse. We plan for 10% of the time and then we try and execute for 90% of the time. So that's why the time and this entire जो हमारा efforts है वो ज्यादा जाता है. So that is what I try to mean here is ये strategy आपके सामने है, इसको आपको fulfill करना है, compulsory इसको रख देना है, ठीक है। तो चलें अपन आगे बढ़े, yes or no? तो मैं क्विकली जल्दी से करंट अफेयर के पिछले बार के जो पैसेजेस थे जल्दी जल्दी अपन लोग, मैं डिस्कस कुछ भी नहीं करूंगा, इनफैक्ट मैं 3-4 न्यूज़ेस आपको दे दूंगा जो अभी चल रही हैं, उसमें और कितना एलिब्रेशन करना है वो देखना है, बट फिलहाल हम जल्दी से करंट अफेयर्स के पैसेजेस पढ़ के देख लेते हैं कि किस किस के टाइप के थे। तो और आप भी नोट करते जाइएगा कि करंट अफेयर्स के पैसेजेस में हमसे क्या एक्सपेक्टेड है। अरे गया क्या, सो दिस इज योर करंट अफेयर। सो पहला पैसेज जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यू कैन सी, नाम से ही समझ में आ रहा है, दिस इज डैम ई सीरियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज समथिंग विच विल बी देयर फॉर लॉन्ग, ये आएगा। दिस इज फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस पैसेज फर्स्ट पैसेज इज फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें स्पेस, स्पेस जो साइंस है, एक डिफेंस अलग होगा और एक स्पेस अलग होगा। सो इट इज बीन हाईली एक्सपेक्टेड कि अगर इस बार स्पेस है तो डिफेंस लगभग लगभग आपके चांसेस बनते हैं। एनालाइज करो इसको, ये तरीके से एनालाइज करो, ठीक है। अब मैं एक किसी के क्वेश्चंस आपको पूछ लेता हूं, क्वेश्चन नहीं पूछता हूं मैं, आपको केवल और केवल क्वेश्चन के टाइप बता देता हूं। पहले क्वेश्चन में आपको किसी चीज का नाम बताना, ये क्या है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये प्योर नॉलेज पे डिपेंड, प्रायर नॉलेज, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं पता। दूसरा क्वेश्चन फिर से आपका फैक्ट बेस्ड है, तीसरा क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है, चौथा क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है, पांचवा क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड। यस और नो? तो नो डाउट फैक्ट का ज्यादा बोलबाला रहेगा, तभी तो वो करंट अफेयर है। भले ही वो लोग बोलेंगे कि आपको प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, बट नॉलेज तो लगेगा ही लगेगा। तो फैक्ट बेस्ड पे हमारे पास पांचों क्वेश्चंस थे, और पांचों क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया और स्किल्स के बेसिस पे आए हुए थे भाई, ठीक है। सो पहला पैसेज हमारा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा, हाँ, सो दूसरा पैसेज वाज बेस्ड ऑन आफ्सपा। आफ्सपा आपको पता ही होना चाहिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर पे लगाया हुआ है, ठीक है। ये एक स्पेशल पावर देता है मिलिट्री को, और उसके बाद वो किसी को भी उठा लाए। तो आफ्सपा के ऊपर मतलब ये जो टॉपिक है ये किस पे बेस्ड हो गया, ये किस पे बेस्ड हो गया टॉपिक, नेशनल सिक्योरिटी, या आप बोल लीजिए ये लीगल एस्पेक्ट पे डिपेंडेंट। तो इसमें अमेंडमेंट्स चल रहे हैं या इसको रिमूव करने की बात हो रही है। देखो लीगल मतलब क्या क्या, कोई नया लॉ, एग्जिस्टिंग का अमेंडमेंट, चेंजेस, या फिर
उसको कहीं पर्टिकुलर एरिया से रिमूव करा जा रहा है, या फिर उसको लेकर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही। जैसे फार्म लॉ था ना, उसको क्या करना पड़ा, हटाना पड़ा, रिमूव करना पड़ा। तो फार्म लॉ अपने को पढ़ने की बात पड़ जाती थी, हालांकि पिछले साल ही हो गया, कभी आया ही नहीं है, 1 साल हो जाएंगे फार्म लॉ हटाते हुए। पिछले बार जब गुरु नानक जयंती के दिन हमने फार्म लॉ हटा लिया था। वैसे ही आफ्सपा जो है बेस्ड ऑन जो स्पेशल पावर्स पे है। अब लुक एट, ये जो पहला क्वेश्चन है 36, दिस इज एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन। ऑल्दो इसमें नॉलेज की जरूरत है, बट ये तभी पॉसिबल है जब आप अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी क्लियर है, तब आप एनालिटिकल बेस्ड उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। 37 इज प्योरली फैक्ट, 38 इज वंस अगेन एनालिटिकल बेस्ड। देखो एनालिटिकल और फैक्ट को बहुत हद तक आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मत समझिए। एनालिटिकल मतलब जो किसी स्पेसिफिक फैक्ट पे नहीं है, जो किसी लैंग्वेज पे आ रहा है, किसी भी बेसिस ऑफ लैंग्वेज पे है, आपको उसका कॉम्प्रीहेंशन पता है तो आप आंसर कर पाओ। यस और नो? इरोम शर्मिला जो करके एक्टिविस्ट है मणिपुर की, आपको पता होना चाहिए कई सालों तक वो फास्टिंग पे थी, इंडेफिनिट फास्ट फ्रॉम 2000। लुक इट, तो वो ये आपके पूरा का पूरा बेस्ड ऑन आपके एनालिसिस पे है। 39 सीधे आंसर देख के समझ में आ रहा है, हेड कमिटी मतलब क्या हो गया, ये फैक्ट बेसिस पे हो गया। और आफ्सपा इज करेंटली फोर्स इन दिस, तो ये आपका दोनों एनालिटिकल एस्पेक्ट पे बेस्ड है और आपको नॉलेज भी होना चाहिए, फैक्ट भी पता होना चाहिए। सो बेस्ड ऑन दिस सेकंड पैसेज वाज बेस्ड ऑन अमेंडमेंट इन लॉ, और मतलब किसी लॉ को अबॉर्ट करने का के ऊपर एक डिस्कशन चल रहा था। और ये क्यों आया था, क्योंकि आफ्सपा को लेके एक बड़ा क्राइटेरिया आया था। एक आर्मी की जो वैन थी, उन्होंने कुछ लोगों पे फायरिंग कर दी, जिसके कारण, क्यों फायरिंग की थी, क्योंकि उनको चेस कर रहे थे और उनको ऐसा लगा कि ये लोग कौन है, उसमें टेररिस्ट हैं। तो उसके बाद ये रिवोक करने की बात आई है ना, रिवोक नहीं हुआ, हालांकि अभी भी उसमें कुछ हद तक क्लॉजेस हैं लगा हुआ और अभी भी बराबर है। थर्ड पैसेज was purely based on what? Pretty much expected, रशिया यूक्रेन वॉर पे है। यहां इस साल का सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन सा है, करंट अफेयर इंटरनेशनल में सबसे बड़ा भी इशू कहां चल रहा है? ईरानियन रेवोल्यूशन, हिजाब। जो हिजाब का रेवोल्यूशन चल रहा है, ये नोट कर ही लो, लिख लो, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आएगा यार। क्योंकि हिजाब कंट्रोवर्सी हमारे यहाँ पे भी हुई है, और हिजाब का कंट्रोवर्सी ईरान में चल रहा है, और उसके सपोर्ट में अक्रॉस द वर्ल्ड लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बट वो हिजाब कंट्रोवर्सी नहीं रही है, वो कन्वर्ट हो गई है ईरानियन रेवोल्यूशन 2.0। मैं बात करता हूं, अभी डिस्कस करते हैं। पर ईरान, ये न्यूज को बहुत डीप में जाना तय है, ये न्यूज आपको पाएगी जाएगी, ध्यान रखो। तो रशिया यूक्रेन वॉर इज एन इंटरनेशनल अफेयर। इंटरनेशनल अफेयर इज इंटरनेशनल अफेयर हमारे लिए। यस श्रद्धा, वेरी गुड। इंटरनेशनल इशू है, तो इंटरनेशनल लगभग तय है, एक न्यूज आती ही है, तो वो समझो, पढ़ने की कोशिश करो उनके माइंड को। तो मुझे, मैं बोल रहा हूं जितना मैं समझ रहा हूं, एक इंटरनेशनल इशू लगभग तय है आना 7 पैसेज में से। तो वो कौन सा होगा इस बार सबसे हाईली डोमिनेंट फैक्टर पे? क्या है? ईरानियन रेवोल्यूशन। नंबर 2 पे आप कह सकते हो चाइना और यूक्रेन, चाइना और ताइवान, या हमारा जो डिप्लोमेटिक इश्यूज जो चल रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है एक्चुअली, इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है उसका। श्रीलंका क्राइसिस भी हो सकता है, नो डाउट। श्रीलंका क्राइसिस एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, बिल्कुल करेक्ट है, बढ़िया, वो भी हो सकता है। ये तो पूरा का पूरा फैक्ट बेस्ड था, प्योर फैक्ट बेस्ड था। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 42। ये देखो क्वेश्चन, इसका स्पेलिंग। सो इससे क्या सीख मिली 42 से? 42 ये पैसेज से ना एक बड़ी सीख मेरे को भी मिली। पहली बात तो, आप जब नोट्स बनाते हैं ना, तो नोट्स को आप खुद से बना के राइट करते हैं ना, तो उसका ये एडवांटेज होता है कि आप ऑटोमेटिकली स्पेलिंग्स भी लिखते हैं। तो वो एक फायदा आपको मिलना है आपने जब नोट्स बना रहे हैं। दूसरी बात, आपने अगर गौर किया हो, पैसेज है रशिया यूक्रेन वॉर पे, बट ज्यादा चीज काय पे पूछा है? यूक्रेन।
क्योंकि हम बीइंग अ डिप्लोमेटिक, मतलब एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया का जो पोजिशनिंग है वो पोजिशनिंग हमेशा वॉर के अगेंस्ट में। और यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया। तो एक्चुअली देखा जाए तो रशिया रॉन्ग है। तो वो आपको ये नहीं चाहता है कि आप रशिया के बारे में ज्यादा जाने, वो क्या चाहता है, आप यूक्रेन के बारे में ज्यादा जाने लॉजिकली। इसलिए ये पांचों पैसेजेस आप क्वेश्चन देखो, उसका पर्पस ये है कि ये यूक्रेन की तरफ मोल्ड किए हुए। इज इट क्लियर? सो दैट्स व्हाट बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से हम लोग अपनी अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं बाय एनालिसिस। पांचवा कौन सा नंबर का पैसेज है ये? नहीं ना, फोर्थ होगा ना। अब ये फोर्थ आया। फोर्थ पैसेज काय पे है? ग्रीन टेक्नोलॉजी, मतलब एनवायरमेंट। तो आप खुद ही देख लो, ये टॉपिक्स बेसिकली कंपलसरी हैं, आना ही आना है। इन्वायरमेंट पे इस बार कौन सा आएगा? हाइड्रोफ्यूल। हाँ, हाइड्रोफ्यूल को लेके चल रहा है। अभी मैंने रिसेंटली देखा गडकरी जी की फोटो किसी के साथ, जिसने चैलेंज किया कि 150 रुपए में 250 किलोमीटर हाइड्रो में। अनदर important, I'm not sure, but yes, hydro is one of the important point, क्योंकि ये ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेके आया है। एक आपका रहेगा, दिस इज पैसेज पढ़कर ही आपको समझ में आ रहा होगा काफी कुछ डेटा है। तो ये थोड़े से रिस्की होते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ आएगा, नहीं पढ़ा है तो ये दिक्कत करेगा। ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा देख के समझ के, एलिमिनेशन मुश्किल होगा। रशिया यूक्रेन में एलिमिनेशन आसान। क्यों आसान था? क्योंकि वो आपने पढ़ा है, उसको एनालिटिकली अंडरस्टैंड किया है। बट ग्रीन टेक्नोलॉजी यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ये टफ जाएगा। अगर इसमें क्वेश्चन वैसे हैं तो ये सितंबर 2020 का न्यूज में दे दिया। पेपर कब हुआ था? 2022। और ये न्यूज कहाँ का, ये क्या, विच कंट्री इंडिया एंटर इनटू ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इससे क्या समझ में आ रहा है पहले क्वेश्चन से? ये न्यूज उसका नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी का, उसका 2020 से है। समझ रहे हो आप? तो जब अपन ईरान पे हिजाब के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, ये बात समझो। तो कॉन्टेक्स्ट, हर वो चीज का कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड हो जाएगा जो हमारी न्यूज को एक्चुअली चेंज करता है, उसको इंपैक्ट करता है। समझ रहे हैं आप? और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मतलब हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी हुआ है और हमने इसको बहुत बार डिस्कशन भी किया कि भाई ये आते ही आते। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज समथिंग व्हिच इज वी रियली नीड टू हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑन, बेस्ड ऑन दैट। समझ आ रहा है? फिर ये रैंकिंग वाले ना थोड़े खतरनाक। और ऑप्शंस देखो, डर के रहना ऐसे क्वेश्चन, अनटिल अनलेस आपको पता नहीं हो छोड़ दो। आपको 100% तो करना ही नहीं है ना क्वेश्चन। ये रैंकिंग का प्रॉब्लम ये है कि आपने इधर उधर किया, वो 0.25 लिख चला जाएगा, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंट मत रहना। ये वाला क्वेश्चन 49-50, ये प्योरली एनालिटिकल। अगर आपने उस पैसेज के बारे में पढ़ा है तो आप कहीं ना कहीं लिंक कर सकते हैं। हाँ, 50 मोर लाइक आई थिंक फैक्ट बेस्ड रादर देन एनालिटिकल, बट 49 इज प्योरली एनालिटिकल बेस्ड। आपको क्लियरिटी है एनालिटिकल बेस्ड मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल बेस्ड? हाँ, सिंपल, आपका अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स दैट पैसेज इज योर एनालिटिकल। सब कुछ एनालिटिकल बेस्ड नहीं हो सकता, नहीं तो फिर क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और फैक्ट बेस्ड 100% रखेंगे तो भी बहुत दिक्कत, इसलिए वो लोग मिक्स कर रहे हैं। 50 इज बेसिकली ऑन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो था इसके ऊपर बेस्ड था। हाँ, अब अपन कौन से पैसेज पे हैं? पांचवा। ये पैसेज सोशल इशू पे। तो सोशल में कोविड 2020 में आया, 21 में वो नहीं था, 22 में फिर अतर गया वो कोविड। तो कोविड को इस बार उन्होंने क्या लिया? सीएसआर। सीएसआर क्या होता है? 2% कॉर्पोरेट्स को अपनी प्रॉफिट का क्या करना पड़ता है? कंपलसरी दान करना पड़ता है, डोनेट करना पड़ता है। ये रूल है इंडिया में। जो भी प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, उसका 2%। उसकी स्लैब है, छोटे मोटे कंपनीज को नहीं, बट 100 करोड़ 500 करोड़ ऐसे वाले जो कंपनीज रहती हैं, तो मान के चलो किसी कंपनी का 100 करोड़ प्रॉफिट है,
तो 2% आपको क्या करना पड़ेगा, CSR करना पड़ेगा। तो वो CSR के बेस्ड ऑन, तो CSR को किसमें अलाउ कर दिया था, कोविड रिलीफ के लिए। तो ये एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, बट आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो ये अनप्रेडिक्टेबल था, नो डाउट। ये टॉपिक ऐसा है कि आप बोलिए कि आप प्रेडिक्ट कर लोगे, नहीं, मैं गलत है इसको मैं बोलूंगी भी प्रेडिक्ट किया, नहीं, हमने इन बिटवीन कभी ये टॉपिक पढ़ा दिया होगा, किस्मत से आपने किया होगा तो ठीक है। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड टॉपिक था। आउट ऑफ अभी तक कितने हुए, 5, 5 में से 4 प्रीटी मच एक्सपेक्टेड थे, ऑन एन एक्सपेक्टेड लाइन थे। पहला अपन ने किया था किस पे, स्पेस के ऊपर, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या था, हाँ, आस्पा के ऊपर। तीसरा रशिया यूक्रेन। चौथा ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब एनवायरमेंट। पांचवा ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सोशल सोशल जो कॉज होते हैं सोशल, उसके लिए रिलेटेड। सोशल में और कौन सा हो सकता है करंट न्यूज के हिसाब से सोशल, बताइए चलिए, अभी भी लेटेस्ट जो चल रहा है, आप कैसे रिलेट करेंगे सोशल इश्यूज को, हाँ? डिफाइन करो भाई। वो लंपी डिसीज जो हो गया बेटा, वो हेल्थ रिलेटेड। लंपी डिसीज कैन बी वन ऑफ द, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एबॉर्शन, फेबुलस, हिजाब, ये भी एक सोशल इशू है। यस और नो? एबॉर्शन वाला न्यूज सुना है कि नहीं? मैं लगभग तय है इंटरनेशनल अफेयर्स में भी आ सकता है, या इंटरनेशनल अफेयर के नाम पे आ सकता है, या फिर अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो ये लीगल पे आ सकता है। पर ये तय है कि वो एबॉर्शन लॉ आएगा, क्योंकि यूएस में उसके अगेंस्ट में गया, तो उसके चक्कर में अक्रॉस द वर्ल्ड उसका एक प्रकार का एक अलग प्रकार का एक पूरा मतलब गया दुनिया में एक मैसेज की यूएस में किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। क्या है न्यूज यूएस का वैसे? Unmarried women, if they got pregnant, they have no right to abort. पर वहां पर भी बटा हुआ है यूएस। ठीक है, यूएस में 2 प्रकार का लॉ चलता है। एक होगा जो स्टेट अफेयर्स जो होंगे, मतलब जो सेंट्रली डिसाइड जो लॉ होता है, जो उनकी सीनेट डिसाइड करती है, जैसे हमारी पार्लियामेंट, वहां सीनेट होता है। तो पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, बैन कर दिया कि नो, यू डोंट हैव अ राइट टू अबॉर्ट इफ यू आर अनमैरिड। ठीक है, पर स्टेट वाइज वहां लॉज बहुत डिफरेंट है। तो अभी भी वहां रिपब्लिकन्स जो स्टेट्स हैं, दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद दिस लॉ, और डेमोक्रेट्स जो है उन्होंने उसको बैन कर दिया। तो ये इंडिया में आया। अभी इंडिया में क्या आया, क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या कहता है, you have all the rights to abort if you are even unmarried also. अब उसके लॉजिकल कंक्लूजन्स कई हो सकते हैं, इंडियन पॉपुलेशन वैसी बहुत है इसलिए अलाउ कर दो, वहां नहीं है वो एक अलग बात है, बट ऑनेस्टली दिस इज एक्चुअली अ सोशल इशू। तो ये इस टाइप की न्यूज़ेस आपके बन सकती हैं। तो चौथा जो ये 6वां पैसेज है ना, ये जो 5वां है, तो 5वां पैसेज किस पे बेस्ड है, सोशल इशू, मेजर सोशल इश्यूज। इसके बाद इकोनॉमिक्स पे नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। तो ये रहा आपका यूनियन बजट और ड्रोन शक्ति। ये टेक्नोलॉजी पे था, बट इसका जो एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे भी चला गया है। बट ये ड्रोन शक्ति जो है ये एविएशन टेक्नोलॉजी पे चला गया क्वेश्चन है, जो आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट इस पे भारी है। ठीक है, तो ये भी पैसेज अगर आप देखेंगे, इसमें न्यूज क्यों बना, लुक एट 56 क्वेश्चन, इसके कारण कि वैक्सीन डिलीवर करने में ये हेल्प कर रहा था। तो कोविड 19 का असर इतना ज्यादा असरदार था कि अभी तक पैसेजेस आए हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना भाई आप। इसको किस में बोलेंगे, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। वो इसरो तो था, वो क्या था, वो डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी पे था। और अभी तीसरा क्या हो सकता है, डिफेंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी पे भी हो सकता है। हाँ, इकोनॉमी में डायरेक्ट नहीं था कुछ भी। तो ये 6 हो गए। 7वां पैसेज ये क्या है,
गवर्नमेंट स्कीम्स, यस। सो गवर्नमेंट का मैरीटाइम जो स्ट्रेटेजी 2007, ये गवर्नमेंट स्कीम पे है। फ्रीडम टू द यूज ऑफ सीज, they kept upgrading their vision document regular interval, and with the latest being declared 2015 the security साज जो है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था, किसके लिए? मैरीटाइम के लिए। तो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव थे, उसके जो प्रयास का जो भाई बेनिफिट आया, उससे रिलेटेड ये पैसेज था। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ये भी मान लो आप, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था उस लाइन पे, बट ऑन एन एवरेज ये पैसेज बेस्ड ऑन आपकी कंटेंट ऑन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको लेके। ये डायरेक्टली इकोनॉमी पे नहीं कह सकता, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये कंसिडरेशन आएगा। समझ रहे हैं आप? सो दिस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी डायरेक्ट पैसेज इकोनॉमी पे नहीं लिखा है। तो इससे एक बात साबित होती है कि देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी अ पैसेज इन इकोनॉमी। और क्योंकि इस बार बड़ा गड़बड़ हुआ है, रेपो रेट इधर बड़ा घटा, काफी कुछ चेंजेस आए हैं वर्ल्ड में, वर्ल्ड ओवर। आप अगर देखेंगे जो यूके में चल रहा है, ठीक है, मैंने एक मेरे स्टेटस पे डाला था अपना, उसमें आई हैव रेड वन मतलब एक पीस कहीं पे मैंने ट्विटर पे रीड किया था। तो यूके इज ड्राइविंग अ कार विद अ फुल एक्सेलेरेटर बट हैंड ब्रेक ऑन कर। तो क्या होगा भाई? रेस पकड़ेगा, गुर 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 आवाज करेगी, पर गाड़ी चलेगा क्या? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वन साइड से यूके इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है और दूसरे साइड से यूके मनी पंप भी कर रहा है सिस्टम। हम इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाते हैं? मनी को सक करने के लिए। अगर सक किया मनी को, तो मैं पढ़ाऊंगा, अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बट ये एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट चल रहा है ग्लोबली। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट इकोनॉमी पे, खासकर इन्फ्लेशन रिलेटेड, आपको एक आर्टिकल मिल जाए। बट अगेन बहुत डीप में नहीं। हाँ, एलिजाबेथ मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट आएगा, बट एलिजाबेथ कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाए, लगभग तय है, वो किसी पैसेज का हिस्सा हो। डायरेक्ट आने के चांसेस आई एम नॉट श्योर, बाकी बहुत ज्यादा नहीं है डायरेक्टली रिलेटेड, क्योंकि शी वाज वेरी ओल्ड। इनफैक्ट साइरस मिस्त्री वाला केस बहुत हद तक याद रखिए, क्योंकि साइरस मिस्त्री की डेथ कैसे हुई है? सीट बेल्ट नहीं पहनने से। तो ट्रैफिक रूल्स, रोड एंड सेफ्टी, इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं ये लोग, सचिन तेंदुलकर एंड कंपनी, है ना? रोड एंड सेफ्टी टूर्नामेंट होता है वो, तो उसको छोड़ दो टूर्नामेंट को, बट रोड एंड सेफ्टी को लेके एक बड़ा कंसर्न है। साइरस मिस्त्री इज अ बिग न्यूज, ठीक है। एलिजाबेथ कहीं ना कहीं आपको जरूर आएगी, हाँ, क्योंकि वो ऐसा है ना कि ग्लोबल स्टैंडर्ड पे है न्यूज, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। हो सकता है आपको किसी पैसेज में वो गुजर ले, उसमें आप किधर पे भी आ जाए। वंडरफुल। इन चीता रिलोकेशन, वेरी हाई पॉसिबिलिटी, वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी। चीता वाला जो न्यूज है वो एक्चुअली, सी आप खुद ही समझो कि मुझे कौन सा न्यूज पता होना चाहिए एंड जिसका इम्पैक्ट कितना आया। चीता का न्यूज कितना भयंकर कवर हुआ है, आपको समझ आ रहा है? मीडिया में, मीडिया में इतना जो, और वो वाकई में बड़ी बात है, क्योंकि हम एक्चुअली ट्राई कर रहे हैं, रिकंजर्वेशन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। जो चीजें हमारे पास से चली गई हैं, निकल गई हैं, उसको हम वापस रीडेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। ये आपके लिए जरूरी हो गया, कुछ पता कर, बहुत क्रूशल हो गया। तो ये तो कंपलसरी है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, चिंता मत करिए। इस बार मेरी पैसे कलेक्ट तैयारी है, पर वो अभी नहीं, वो लास्ट में आपको मिल ही जाएंगी, आखिरी के 20-25 दिन पहले, वो जो बहुत क्रूशल न्यूज है। बट आपको मैं अभी भी बताते चल रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब मैं आपको न्यूज दूं तो आप बोलो सभी पता है सर। ऐसा रहना चाहिए, आप कुछ उसमें से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो न्यूज़ेस रहेंगी मेरे तरफ से भी, आपको लास्ट लास्ट में दी जाएंगी आखिरी नवंबर में। पर प्रैक्टिकली आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें से निकालिए दो आर्टिकल्स, दो न्यूज़ेस बहुत अनएक्सपेक्टेड थे। आई बिलीव दिस वन, और एक वो वाला जो मैंने बोला, हाँ, CSR। बाकी 7 में से 5 पैसेजेस प्रिटी मच ऑन अ प्रोजेक्शन लाइन पे ही है, या फिर जो हमने डिस्कस किए ही है प्रैक्टिकल।
अफ्स्पा डिस्कस किया है हमने हमने रशिया यूक्रेन डिस्कस किया हुआ है। पहला ग्रुप जो है पहला वाला जो पैसेज था स्पेस को लेके वो कितने बार। हाँ, अब आप ये मत बोलिए कि जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं वही आ जाएंगे। ऑब्वियसली वो तो नहीं हो सकता ना भाई, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए, तो दिस इज बेसिकली द आपका करंट अफेयर। आई बिलीव दिस इज क्लियर। करंट अफेयर खत्म हो गया। ओके चलो, अब हम आते हैं क्यूटी के तरफ। ये लो भाई, जिनके पास है, नहीं है ना, लास्ट पेज पे चले जाओ, सेकंड लास्ट पेज। ठीक है, 3 पैसेजेस पहले मैं बता देता हूं पैसेजेस में क्या एक्सपेक्टेड था। क्यूटी के तीनों पैसेजेस ये फटाफट हम सॉल्व भी करेंगे, ये मैंने अभी तक नहीं करवाया। तो क्यूटी 2022 के मैं आपको सॉल्व भी करवा दूंगा, प्लस क्या एक्सपेक्टेड था ये भी बता दूंगा। और मुझे क्यों लगता है कि दिस इज मोर अलाइन विद द एक्सपेक्टेशन, बिकॉज एक्चुअली आपसे यही पूछा जाना चाहिए। पहले पैसेज में सरप्राइजिंगली शॉकिंगली ज्योमेट्री वगैरह आ गया था पहले साल। फर्स्ट ईयर में क्या आ गया था? ज्योमेट्री पूछ लिए। मतलब कोई सेंस है? कंपास नहीं ना बेटा, ज्योमेट्री वैसा ज्योमेट्री नहीं पूछे कि एंगल बनाओ। ज्योमेट्री मतलब फॉर्मूले बेस्ड ज्योमेट्री थी। कंपास की क्या जरूरत? तुम लोग मैथ इतना छोड़ चुके हो कि तुमको एप्टीट्यूड के मैथ्स में कभी कंपास देखा के लगाते हो? इतना छोड़ दिया अपन ने मैथ्स, सर हमको याद ही नहीं। पहला पैसेज जो है परसेंटेज बेस्ड है, पूरा परसेंटेज बेस्ड है। चलो फटाफट ट्राई करेंगे सभी, एक बार खत्म करके मैं इसको सॉल्व करा देता हूं। मैंने भी अभी तक सॉल्व नहीं किया। 10 मिनट में 10 होगा कि 15 होगा? बढ़ाना पड़ेगा। 10 मिनट में 5 नहीं कर सकते भाई, कम से कम 8-9 तो होने चाहिए। पढ़ डालो, जल्दी पढ़ डालो, करते हैं, मैं अभी सॉल्व करा देता हूँ। ओके गाइस, सो कैन वी सी दिस? as per the survey conducted in college, out of total students enrolled is 3000 2021, 1700 were girls, 1300 were boys. Data regarding the students opted for the various streams from non-medical, medical, commerce, arts, fine arts showed that 25% of the enrollment opted for non-medical. Okay? And the percentage of girls for non-medical was 30%. And of the total girls, 15% of the total number of students opted for medical, and percentage of the girls who opted for medical was 18% of the total number of girls. 25% of the total student opted for arts, but the percentage of girls who opted for arts was 15% in total number of girls. 16% of the total students opted for commerce, and percentage of the girls who opted for commerce was 17% of the total number of girls. And 19% of the total students opted for fine arts, and the percentage of the girls opted for fine arts were 20%. क्या समझ आया? हमारे पास जो डेटा है उसका बाइफर्केशन कैसे किया गया है? स्ट्रीम्स में किया गया है। और उन स्ट्रीम्स का बाइफर्केशन कैसे किया गया है? मेल एंड फीमेल में, बॉयज एंड गर्ल्स में, राइट? सो आपको सॉल्व करने के लिए ऑनेस्टली क्या कर लेना चाहिए था? 3000 है, इसके 2 बाइफर्केशन है, 1700 गर्ल्स हैं और 1300 बॉयज हैं। इसको अलग करते हैं और याद रखेंगे, और बाकी हम लोग बाइफर्केशन करते हैं इन स्ट्रीम्स में। स्ट्रीम्स कितनी है? various streams with non-medical, medical, commerce, arts and fine arts. तो 5 streams हैं। तो ये है A, वो अलग है ना बेटा, देखो डेटा ही अलग अलग दिया है ना, नॉन मेडिकल का डेटा दिया हुआ है ना, 5 ही है ना। दैट्स व्हाट नॉन मेडिकल मतलब, उसमें कॉमर्स आर्ट्स फाइन्स नहीं है, ठीक है। बी हो गया आपका ये, सी डी और ई जो हो गया ये, ठीक है। आप इसको प्रॉपरली डिफाइन करके बना सकते थे। व्हाट इज ए? नॉन मेडिकल। व्हाट इज बी? मेडिकल। व्हाट इज सी? कॉमर्स। व्हाट इज डी? आर्ट्स। एंड व्हाट इज ई? फाइन आर्ट्स। करेक्ट। अब आप इसमें से पहले क्या डेटा निकालेंगे कि नॉन मेडिकल में कितने बच्चे हैं।
उसमें से फिर कितनी गर्ल्स हैं वो आप कैलकुलेट करेंगे तो बचे हुए बॉयज आ जाएंगे. सो कैन आई से नॉन मेडिकल, दो प्रकार के कैंडिडेट्स हैं, बॉयज एंड गर्ल्स. पढ़ो यहां पर क्या लिखा है. shows that 25% of the enrolled student opted for non-medical. तो टोटल नॉन मेडिकल कितना होगा 3000 का 25%. अब कुछ परसेंटेज स्केल्स कितना हेल्पफुल हो सकता है. 25% मतलब 1/4 होगा. 1/4 इज 2 बार आधा करना, आधा 1500 और उसका आधा 750. सो टोटल नॉन मेडिकल इज 750 and the percentage of the girls in non-medical was 30% of the total number of girls. So total number of girls किसका 17. समझ आ रहा है आपको. ये डेटा बस इतना ही कॉम्प्रिहेंड करने लायक था कि 1700 का 30%. व्हाट इज 30% ऑफ 1700? 10% 170. सो उसका 3 गुना कीजिए तो कैन से ये 510 होगा. तो ये कितना हो गया, ये बन गया 750. दिस इज ए, दिस इज बी. बी क्या होगा, हाउ मेनी गर्ल्स हैव ऑप्टेड फॉर नॉन मेडिकल. ये लोग पहला गया. ठीक है क्वेश्चन. बट मुझे लगता है कि पांचों बना ही लेना चाहिए क्योंकि लगेगा जरूरत पड़ेगा, इतना भी इजी नहीं होगा, पांचों भी बनाने पड़ेंगे. बी मेडिकल. मेडिकल में टोटल क्या होगा आपका, बॉयज एंड गर्ल्स हैं. 15% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर मेडिकल, मतलब 3000 का 15%, 10% 300, 5% 150, तो 450, 450. इसमें से and the percentage of girls who opted for medical was 18% of the total girls. तो 1700 का 18%. अब एक बात देखिए, 1700 का 18% मतलब डिवाइड बाय 100. इफेक्टिवली 17 और 18 को मल्टीप्लाई करना है तो 17 इंटू 18 कितना होगा, 17 स्क्वायर प्लस 17, 289 प्लस 17 कितना होगा 306. तो गर्ल्स कितने ऑप्ट किए हैं 306. बचे हुए बॉयज कितने बॉयज हैं 144. इज इट क्लियर. सी, ये करते रहो भाई, कर दो, है ना, नहीं तो ये करोगे तो कम से कम आपको आगे जाके इजी होगा. सी, आगे बढ़ते हैं. कहां तक अंडरलाइन करना था भाई, ऑप्टेड फॉर मेडिकल. ये 25% ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर आर्ट्स, बट परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर आर्ट्स वाज 15%. ठीक है, तो मैं थर्ड नंबर पे किसको लिख रहा हूं, आर्ट्स. तो 25% ऑफ टोटल स्टूडेंट मतलब ये भी 750 ही है. तो 750 इज आर्ट्स. इसका बाइफोकेशन होगा बॉयज एंड गर्ल्स में. उसमें से क्या लिखा हुआ है कि गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर आर्ट्स was 15% of the total number of girls, but the percentage of girls who opted for arts was 15% of total number. So 15% of what, 1700. 1700 का 15% कितना होगा, 10% 170, 5% उसका आधा 85, 170 प्लस 85 255. इज इट क्लियर. आप मैं क्या कर रहा हूं समझ आ रहा है. कैलकुलेटर रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना भैया. तो 15% कैसे निकाला मैं, पहले 10% निकाला, फिर इतना बेसिक स्किल्स रखोगे तो भी आपका काम इजी हो जाता है. समझो इस बात को. ठीक है, तो 255 255. तो बॉयज कितने 495. अब देखो 255 कैसे माइनस करेंगे, 250 माइनस करो कितना हुआ 750 में 250 माइनस करो कितना 500, कितना बचा 5, 5 और माइनस करो 495. डी, डी क्या है, 16% of the total student opted for commerce. कॉमर्स टोटल 16%. 3000 का 16% कितना होगा 480. 16 3 48, तो 380 और 480. बॉयज एंड गर्ल्स कितना हो रहा है बॉयज, पहले हाँ गर्ल्स निकालेंगे, सॉरी ऑब्वियसली.
16% of total percentage who girls opted for 17% of the total number of girls. So 17 into 17, right? 289. 289 में पहले 280 माइनस करो, 480 में 280 माइनस करो, 200, अब 9 माइनस करो, क्लियर है? और ई कौन है आपके पास? आर्ट्स। आर्ट्स कितने बचे हैं अभी? फाइन आर्ट्स, सॉरी फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स के लिए कितने लोगों ने ऑप्ट किया था? 19% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर फाइन आर्ट्स। तो 19% ऑफ 3000 कितना होगा? 570। इसको बॉयज एंड गर्ल्स में डाला तो कितने गर्ल्स हैं? 20% ऑफ द गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, 20% ऑफ 1700, 10% 170, 20% इज 340। तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 230। अब जल्दी से बस आपको एक क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था, सारे बॉयज का समीशन 1300 होना चाहिए और सारे गर्ल्स का समीशन, समझ रहे हैं? तो इट्स बेटर भैया कि क्रॉस चेक कर लें। हो सकता है थोड़ा सा टाइम ये फटाक से लगे, पर कर लो भाई, बराबर है? ठीक है, तो ये बराबर ही होगा, बट ये मैं आपको आपके एग्जाम के लिए बता रहा हूं कि इसमें आप थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेट करें। मुझे लगता है कि 4 मिनट 5 मिनट इसी में चला जाएगा, यहीं 5 मिनट लग गया। अब क्वेश्चंस फास्ट कर सकते हो आप, थोड़ा क्विकली यू कैन डिसाइड। पहला तो वैसे ही देख के समझ में आ गया। इसमें से भी जो जो क्वेश्चन सामने वाले हैं वो देख लेते हैं, दूसरा वाला कैलकुलेट करना उसको पहले नहीं करना। पहले किसको करेंगे? 138। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स हैव बीन ऑप्टेड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज? मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज किस कोर्स में है? आर्ट्स। आर्ट्स में कितने बॉयज हैं? 495। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स हैव बीन ऑप्टेड बाय मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज? मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज कॉमर्स, कितने कॉमर्स में? 191। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अमंग द बॉयज एंड द गर्ल्स इन नॉन मेडिकल? ओ आई एम सॉरी, ये गलती मत करना भैया। चलो मेडिकल 140 तक देखो। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द अमंग द बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन मेडिकल? क्या रेशियो है? 24:51। और छोटा करें तो ये 8:। 4 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, डुएबल थे। हाँ डुएबल थे, करेक्ट। व्हाट अबाउट 137? ये भले ही डुएबल होगा, बट इसको अपन ने लास्ट के लिए रखा क्योंकि ऑप्शन देखो, समझ आ रहा है कि कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपने ये क्वेश्चन मिस भी कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट अगर डायरेक्ट बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। गर्ल्स हैव आउट नंबर बॉयज इन फाइन आर्ट्स, ये बात बराबर है? यस और नो? हाउ मेनी गर्ल्स इन फाइन आर्ट्स आर मोर देन द बॉयज एज अ परसेंटेज? मतलब फाइन आर्ट्स में यहां पर आपको डिफरेंस का परसेंट कंपैरिजन करना। तो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? डिफरेंस कितना है? 110। समझ आया डिफरेंस कैसे? ये देख, मोर देन का मतलब क्या होता है? मोर देन लेस देन वी हैव टू कैलकुलेट डिफरेंस। ओके, तो मोर देन अगर अपन देख रहे हैं तो 110 है, इसको किससे कंपेयर करना है? कैसे समझ में आ रहा है बॉयज? एज अ परसेंटेज ऑफ, तो इसको कंपेयर करना है 230 से। इज इट क्लियर? अब देखो आंसर कैसे निकाला जाता है, तब कॉन्सेंट्रेट करिए। पहली बात तो ये 0 0 कैंसिल हो गए। कैन आई से 23 का 50% कितना होता है? 11.5। यस और नो? 23 का आधा 11.5 23। अगर 11.5 होता तो 50% होता, बट हमारा वैल्यू कितनी है? 11 है, मतलब आंसर 50 से कम है। तो 50 से कम ये हो सकता क्या? ये हो सकता क्या? नहीं। अब बचे 2 ऑप्शंस, तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसके क्लोज है ये? 50 के करीब ही है ना, कि दूर है बहुत? 50 के बहुत करीब है, इसका मतलब अंडरस्टूड? सो आउट ऑफ 5 4 इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिफ्थ वन जो 137 था, उसको छोड़ा भी होता तो भी 4 तो सही होते थे, 4। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। चलिए, ये सब लिख लिया होगा आप सभी ने। सो पहले आपको सेट को पढ़ना है। दिस इज केसलेट बेस्ड डीआई, है ना? तीनों क्वेश्चन क्या है? केसलेट बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन है।
एक केस दिया हुआ है, उसको कॉम्प्रीहेंड करना है एंड देन आपको निकालना है। तो चलिए, अरे भाई तुम लोग का वो मेरा लड़का आएगा ना 6 साल का, उससे पूछना, वो बताएगा तुमको। 10⁻⁶, a million is 10 lakhs, ठीक है। अरे न्यूज़पेपर ही में ढंग से पढ़ लिया करो। a million is a 10 lakh, a crore is 10⁻7, a billion is 10⁻9। यूएस स्टैंडर्ड, यूके स्टैंडर्ड में जब अपन मेजरमेंट करते हैं तो वो 1000 होता है, 1000 के बाद मिलियन होता है, बिलियन होता है, ट्रिलियन होता है, और हर एक में 3 जीरोस होते हैं। 1000 मतलब 3 जीरोस। उन लोगों को 9 लाख बोलना है तो वो 900,000 बोलते हैं। क्या सुनो, तो वहां 9 लाख नहीं है, 900,000। तो क्या पहला क्या चालू होता है, 10 लाख। तो 3 जीरो से 6 जीरो हुए। तो बिलियन में कितने जीरो होंगे, 6 से 9। 9 जीरोस इज 1 बिलियन एंड ट्रिलियन विल बी 3 जीरो और 12। समझ गए, 3 6 9 12। और भी आगे भी होता है, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है अपने को। An Indian company having its registered office at Gurugram is engaged in manufacturing of consumer goods at Noida. The goods manufactured by the company are sold in Indian market and exported to Europe. ये सब फालतू था अपने लिए, समझ में आ गया? इतना इंफॉर्मेशन कोई लेना देना नहीं है। कंपनी प्रोड्यूसेस 5 प्रोडक्ट, यहां से शुरू होता है अपना काम। PQRST, ये इसलिए भी बोल रहा हूं मैं कि जब आप आरसी करोगे, लीगल करोगे, तो कई चीजें ऐसी होंगी जो इग्नोर करने वाली हैं। समझ रहे हो? ध्यान से बात समझो। तो कई चीजों को जिसको इग्नोर करना है, आपने उसको एलिमिनेट कर दिया, तो जब दोबारा पढ़ोगे तो कहां से पढ़ोगे, वो चीजों को हटा के। इससे आपका टाइम सेव होता है, ठीक है। तो अभी मैं इस पैसेज को दोबारा पढ़ूंगा तो PQRST है उसके बाद से पढ़ूंगा, रादर देन वो पहले 2 पैराग्राफ पढ़ो, है ना। Company produces 5 products, namely PQRST. The total production of the company for the financial year 21-22 is 3,000 tons, and the turnover in the company is 50 million. Please don't put in zeros. Million is 10⁻6 रखेंगे, और वो भी जरूरत पड़ने पर, नहीं तो मिलियन छोड़ दो, हमारे लिए 50 रखो बस। समझ रहे हैं आप? 50 से ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। An analysis of the production and net revenue generation shows that the production of product P is 20% of the total production and 18% of the turnover is attributed to the production P. Production of Q is 16% of the total production and the 17% of the turnover is attributed to Q. R accounts for 18% of the total production and 20% of the turnover. S accounts for 20%, 25%. This is even easier, guys. Why it is easier? पिछले में वो बॉयज एंड गर्ल्स करके उसने और सरदर्द पढ़ाया था। यहां तो 5 ही है, सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन। आपको एक छोटा सा टेबल बना लेना। कैसा टेबल बना लेना था जी? PQRST और इधर प्रोडक्शन एंड टर्नओवर बोले तो सेल्स। अब जितना प्रोड्यूस करोगे उससे ही तो सेल्स करोगे ना, उसी में से सेल्स करोगे। सेल्स कभी ज्यादा हो सकता है क्या प्रोडक्शन से? नहीं। दैट हम ये लो, चलो मैं अच्छे से ग्राफ बना देता हूं, आपको इतना डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है, बट तो भी क्लीन रहेगा तो आपको समझ में आएगा। हाँ, सो ये क्या है? प्रोडक्शन। ये क्या है? टर्नओवर। और ये है आपका टोटल। टोटल जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक टोटल की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां, ठीक है। चलो वॉट एवर। सो प्रोडक्शन कितना है टोटल? 3000 टन। दिस इज 3000 टन। एक टन में कितने केजी होते हैं? 1000। हाँ, 1000 केजी। और एक क्विंटल में? एक क्विंटल 10, 100। 1 क्विंटल इज 100 kgs, 1 ton is 1000 kgs, 10 क्विंटल इज 1 ton। हाँ, नहीं बोल रहे बराबर ना? मैं टेंशन नहीं लेने का, नहीं तो मेरे को मत दो। और हाँ, the total production is 3000 ton and turnover of the company is 50 million. तो 50 million, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जीरोस की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कहने का मतलब। Now, analysis of the production of the net revenue generation shows that the production of the P is 21% of the total production. So 21% of 3000.
630, 10%, 300, 20% ऐसा भी कर सकते हो। 21 3 करो, 21 3 630 एंड 18% ऑफ द टर्नओवर, तो 18% ऑफ 850 कितना होगा? 90 lakhs में नहीं, डेसिमल में डालेंगे। 50 मिलियन का 18% निकालना है, ऐसे ही करना है। तो ये लो 9 मिलियन। इज इट क्लियर? जीरोस मत लेके आओ, जीरो तब तक पिक्चर में नहीं जब तक कन्वर्ट करने की नौबत आती है। ठीक है, ये हो गया 9 मिलियन। इसके बाद टर्नओवर एट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन पी, प्रोडक्शन ऑफ क्यू इज 16% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, 16% is 16 3 48, 480 है ना, और 17% ऑफ द टर्नओवर, 17% इज एक सबसे अच्छी बात, ये देखो, ये देखो सबसे अच्छी बात, 50 मिलियन डिवाइड बाय 100, ये क्या आ रहा है? 1/2 हो रहा है। तो जो भी यहां पर होगा उसका आधा करना है, यस और नो? तो ये हर केसेस के लिए, तो जो भी परसेंटेज लिखा होगा उसका आधा लिखते जाओ यहाँ पे टर्नओवर वाले कॉलम आ जाएगा। तो ये देखो 17% का 88.5, यस और नो? ठीक है, चलो। R accounts for 18% of the total production, 18 3s are 540 and 20% of the turnover मतलब 10, आधा करते जाओ, खत्म। ठीक है, S के लिए 20% ऑफ टोटल प्रोडक्शन मतलब 600 एंड टर्नओवर इज 25% मतलब 12.5 एंड T अकाउंट्स फॉर 25% प्रोडक्शन मतलब 750, आधे का आधा, वंडरफुल। और 20% मतलब देख लो भाई, ये टर्नओवर लास्ट वाले कॉलम की जरूरत नहीं पड़ी अपने को फिलहाल, क्योंकि वो रिलेशन नहीं बनेगा, वो और कुछ कहलाएगा, अभी आगे जरूरत पड़ाएंगे। प्राइस दिख रहा है? पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या करना है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ आर इफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आर इज 15,000 पर टन। वंडरफुल। क्या करना है बताओ? प्रॉफिट कैसे होगा भाई? प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अरे प्रॉफिट कैसे होता है? दुकानदार का प्रॉफिट कैसा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहां सेलिंग प्राइस बोले तो टर्नओवर, यस और नो? और कॉस्ट प्राइस दे दिया, दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं, यहां दिया, इंफॉर्मेशन में नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया। तो ये केवल और केवल इसके लिए, इसलिए देखो क्या लिखा है, इफ, है ना? तो इफ का मतलब है पॉसिबिलिटी। तो बताइए सेलिंग प्राइस ऑफ आर कितना है? सेलिंग प्राइस ऑफ आर 10 मिलियन माइनस कॉस्ट प्राइस इज 15,000 पर टन। ये कन्वर्ट करना था बस, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग बन रहा है। 15,000 पर टन का मतलब क्या हो गया? कैसे निकालेंगे? 540 टन है टोटल, प्रोडक्शन कितना है? 540 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस कितना है? 15,000। दिस इज योर कॉस्ट प्राइस 15,000 पर टन। कितने जीरोस हैं भाई? ये 4 जीरोस हैं, 4 जीरोस को अलग रखते हैं। 15 इंटू 54 करो। अब यहां ध्यान से देखिए सब, 54 का 15 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ये देखो सब, 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, और 5 से किया तो उसका आधा। सो ये 810 हो जाता है। सो कैन आई से 810, और कितने जीरोस और हैं? 1 4, 10 की पावर 4, इसको भी बाहर कर दिया तो 10 की पावर 5। बट ये 10 मिलियन है, देख रहे हो आप? 10 मिलियन मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर 6। तो मुझे यहां पर भी 10 की पावर 6 चाहिए, तो एक और जीरो खींचना पड़ेगा मुझे। तो कैन आई राइट लाइक दिस 8.1 इंटू 10 टू द पावर 6। 8 8 10 था, पावर 5 हो गया, और एक और अंदर गिर लिया 10 पावर 6 हो। तो क्या पूछा था आपसे? प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आएगा? ये इसकी जरूरत नहीं है आपको, छोड़ दो इसको, ये केवल अपने लिए अंडरस्टैंडिंग। 10 रुपए की चीज, सॉरी 8 रुपए 10 पैसे की चीज कितने में बेचा? 10 रुपए में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ?
1.9 का प्रॉफिट हुआ। 1.9 का प्रॉफिट काय में निकाला जाता है हमेशा? कॉस्ट प्राइस में, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो 1.9 अपॉन 8.1 इफेक्टिवली 19 अपॉन 81 है। यस और नो? अब देखो 19 का टेबल आता है क्या? नहीं आता, कोई बात नहीं, चलो दूसरा रास्ता देखते हैं। 20% कितना होगा? 81 का 20%, 81 का 20% कितना होगा? 16.2। एक्सेलेंट, 16.2। तो अगर 16.2 अपॉन 8.1 होगा तो कहना ही से ये 20% होगा। बट ये तो और भी है, भी ज्यादा है। ये कितना है? 19 है। कितना और बचा हुआ है? 2.8 अपॉन ये 8। एक मिनट, हाँ जी, ये 81 है, तो ये 81 हो जाएगा ऐसा। तो 20% यहां तक आया। अब हमको बस ये निकालना था, ये थोड़ा सा आपको स्किल्स रहनी चाहिए, नो डाउट ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया। 10% कितना होगा 81 का? 8.1। ये 10 से कम है, और 10 से कम में अपन ने 1% लिखा है। 1% कितना होगा 81 का? 1% 81 का 0.81। इज इट क्लियर? तो 0.81 को पढ़ो 3 बार तो 2.4 होता है, और 4 बार पढ़ेंगे तो 3.2 होता है। तो 3 और 4 के बीच में है। दिस इज व्हाट? 3 to 4%। So what is the answer? 23 इसको एक्चुअली इंटू 100 करके ये नहीं निकलता, ये और फंसा देता आप, इसलिए मैंने इंटू 100 नहीं किया। बट समझ आया कैसे किया? नो डाउट दिस इज अ गुड क्वेश्चन, वंडरफुल। अब भाई मैं अगले क्वेश्चन के लिए मैं कैसे करेंगे अपन? ये तो हिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट हैज द हाईएस्ट सेलिंग प्राइस पर टन? हाईएस्ट सेलिंग प्राइस पर टन, विच प्रोडक्ट? सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? वंडरफुल, बस इतना ही देखना था, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी गई अपने को। किधर है ये? दिस इज सेलिंग प्राइस पर टन लिख दिया मैं। और ये कैसे निकलेगा सेलिंग प्राइस पर टन? ये निकलेगा टर्नओवर। ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है। तो कॉलम बी अपॉन कॉलम ए। बट ध्यान रखना ये 9 मिलियन है और ये 630 टन है। यस और नो? सेलिंग प्राइस पर टन बोला है ना, तो सेलिंग प्राइस पर टन मतलब सेलिंग प्राइस कितना है वो देखो आप। तो किसका आ रहा है सबसे ज्यादा? टर्नओवर जो होता है, इधर देखिए सब, कोई भी बताओ लॉजिकली टर्नओवर कैसे बनाया जाता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, करेक्ट? व्हाट इज क्वांटिटी? 630। व्हाट इज टर्नओवर? 9। तो प्राइस कैसे आएगा? प्राइस इज टर्नओवर अपॉन क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब प्रोडक्शन, मतलब वही बात हुई बी अपॉन ए, कॉलम बी अपॉन कॉलम ए। सो ये कितना हो जाता है? 9/630, 1/70 हो रहा है। यस और नो? इसमें सबसे हाईएस्ट पूछा है आपसे, कैसे आया हाईएस्ट? चलो, क्या डायरेक्ट निकाल दिया था क्या? फटाक से आंसर बोल रहे थे आप, डायरेक्ट निकल गया था क्या? कैसे निकला डायरेक्ट बताओ, जल्दी करो। 4 ही ऑप्शन है आपके पास, पी था ही नहीं, निकालना ही नहीं था पी। 4 ऑप्शन है, क्यू आर एस टी, उनको ही देखो। देखो आर और टी में से कौन सा आंसर नहीं हो सकता, अपन ऐसे निकालेंगे। चलिए, आर और टी में कौन नहीं हो सकता है? बोलो, आर नहीं होगा कि टी नहीं होगा? यस और नो? अरे भाई ये देखिए,
8.5 अपॉन 480 है, ठीक है। 10 अपॉन 540 है, 12.5 मिलियंस है ये, है ना, अपॉन 600 है, और ये 10/750। आर और टी में बड़ा कौन है? दोनों का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है वो छोटा है, तो दिस विल वोंट बी योर आंसर 750। बचते क्या है आपके पास अभी? ये तीन बचते हैं। इन तीनों में से सबसे बड़ा पूछा है ना आपसे, विच प्रोडक्ट हैज द हाईएस्ट सेलिंग प्राइस पर टन? बोलो। 8.5 बड़ा, 10, 12.5 क्या बड़ा है इसमें? डिनोमिनेटर सबके अलग अलग है। 8.5 आ रहा है। चेक करो सबसे बड़ा कौन सा है। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन करने लायक नहीं था भाई। निकालो, चलो कैलकुलेटर से चेक कर लो, अपन देख लेते हैं। आंसर्स हैं आपके पास? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन करने लायक नहीं, नो डाउट। ऑप्शन जल्दी चेक करो कौन सा बड़ा आ रहा है, निकालो ना भाई। 8.5 डिवाइड बाय 480 कितना होता है ये? 0.0017, ठीक है, लिख लो कहीं। 10 डिवाइड बाय 540 0.018। तो अभी बड़ा कौन है? 0.018, मतलब क्यों नहीं हो सकता आंसर। और 12.5 डिवाइड बाय 600 0.020। सबसे बड़ा कौन है? एस। एस इज द बिगेस्ट। समझा कैसे करना था? सेलिंग प्राइस पर टन। हाउ मच लॉस इज incurred टू अ कंपनी if the expenditure on production of tea was 20,000 per ton? टी का एक्सपेंडिचर कितना है? 20,000 पर टन। सेम निकालना पड़ेगा, जैसे यहां निकाला वैसे ही निकालो। लॉस निकालने को बोला, ये तो इजी था एक्चुअली क्वेश्चन। सो टी का टोटल प्रोडक्शन कितना है? 750, और कितना है कॉस्ट? कितना है? 20,000 पर टन। ओके, जीरोस अलग करें, 1 2 3 4 5 जीरोस हैं। 75 टू सा कितना होता है? 150, और 5 जीरोस, या फिर 15 इंटू 10 टू द पावर 6। तो व्हाट इज द कॉस्ट? 15। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस कितनी है? 10। तो लॉस कितने का हो गया? 5 मिलियंस का लॉस। इज इट इजी? So this is a mistake if you have taken 142 as a question. This could have been a real problem. ये क्लिक होना चाहिए, ठीक है। 144, the what percentage turnover R has the turnover of T? This is again easy. So it's a mistake अगर अपन ने 142 पिक किया है तो ये easy question छूट जाएंगे। What percentage of turnover of R has turnover of T? R upon T करना है टर्नओवर का। R कितना है? 10, T कितना? 10। अरे तो ये क्वेश्चन नहीं किया तो भैया तो वो क्यों भाई, आज तक किए थे क्या? अपन करते ही नहीं थे अपन, है ना। लो देख लो, तो क्या समझ आया ये सेट से? एक क्वेश्चन ने अपने को गड़बड़ किया, बट बाकी क्वेश्चंस काफी मैनेजेबल थे। व्हाट इज द एवरेज सेलिंग प्राइस पर टन टू द ऑल प्रोडक्ट्स टेकन टुगेदर? नो, दिस इज एब्सोल्युटली इग्नोर्ड क्वेश्चन, क्योंकि जो चीज हमने 142 में की थी उससे आगे का कैलकुलेशन करना है। कैसे? सारी सेलिंग प्राइस निकाल के उनका फिर एवरेज निकालना है। इट इज वेरी वेरी टफ, एब्सोल्युटली इग्नोर करना था, ठीक है। तो ये सेकंड सेट जो था बेस्ड ऑन आपका किस पे था? परसेंटेज। पहला सेट परसेंटेज पे था। थर्ड सेट मैं आगे कभी क्यूटी जब करूंगा तब उसमें मैं साथ में ले लूंगा आपका, राइट। तो थर्ड सेट हम लोग बाद में करेंगे, बट मेक श्योर कीजिए कि आप भी ट्राई कर रहे हैं, और मैंने जो क्या बोला है वो करके आएंगे।
क्लैट का पेपर का एनालिसिस करो 2 या 3 बार अच्छे से। ठीक है, ये अभी मैं अपलोड करा देता हूँ ऑनलाइन, जिसके पास वो नहीं है वो मिल जाए। इज इट क्लियर? चलो, तो आज के लिए इतना काफी है।